अगर तुम लेट हो गए ना म्यूजिक डालने में तो यू माइट नॉट रिलीज इट। आई एम सॉरी, ये है दिस इज अ फैक्ट। ये सबके साथ आगे बढ़ जाते हो, आगे बढ़ जाते हो, नई चीजें सीख लेते हो। रिलीजिंग म्यूजिक इज ऑलमोस्ट लाइक अ सैक्रिफाइस। ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। एंड इफ यू हैव नॉट सैक्रिफाइस्ड एनीथिंग एज एन आर्टिस्ट देन आई वोंट टेक यू सीरियसली। नो ट्रू, डेफिनेटली। मैं एक पार्टी में गया था, टेक्नो पार्टी थी। मैं उस प्रॉपर्टी का वेन्यू का नाम नहीं लूंगा, बट द थिंग इज लाइक क्लिप हो रही थी पूरी पार्टी, क्लिप हो रही थी वो पूरी पार्टी। और आप कह रहे थे ना कि लोग कैसे सुन रहे थे, मे बी दे आर यूज्ड टू इट। मैंने उस पार्टी में एक अतरंगी बंदा देखा, वो स्पीकर के सामने खड़े होकर सुन रहा था। तो मेरी एक पुरानी गाड़ी थी, उसमें जो गेट्स है ना, उसी गेट्स में ना वो बेसिकली इतनी प्रॉपर वो नहीं थी कि मतलब फीलिंग हो कि वो वाइब्रेट इजीली तो वो भी हिलते थे। तो उससे मेरे को रेफरेंस लगता था भाई कि बेस है कि नहीं है, बढ़िया कि कितना वाइब्रेट कर रहा है मेरे गाने में और कितना तेरे गाने में। ये बहुत सही है, मतलब काफी जल्दी फिगर आउट कर लिया आपने, है ना। सो लाइक व्हाटएवर यू हैव, यू नो, जस्ट यूज इट। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा है इस बार, इट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग। बहुत मस्त कन्वर्सेशन। ये क्या मैं मेरे को पता नहीं 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, आई एम नॉट आप श्योर। सिलेक्टेड हैं। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। If you've been watching this all the way to the end, please It's hit crazy that subscribe अगर- button yes, and yeah, absolutely. you know, and let us दबा know. दो, दबा दो भाई। What's up guys, What's welcome up? back to What's up? another podcast. Yes sir. हमने बहुत टाइम से पॉडकास्ट नहीं बनाया। हमने बना रखा है पॉडकास्ट हमारा, वो बट लाइक डन- बहुत डन- टाइम से नहीं, edit- edit like just takes time to edit like podcast, yeah. podcast. But Okay, yes, we are so coming up with new podcast, Definitely, definitely, which is yeah. more studio focused, but like we really enjoy this kind of setting, and I really like this setting. What do you guys think? Like, right? Yeah, definitely. ये सही जगह है यहाँ काफी पे बात ज़्यादा करने के लिए, हाँ। अच्छी वाइब है, मतलब स्टूडियो की भी अच्छी है, बट इट्स लाइक मोर ऑफ अ टेक्निकल वाइब। ये काफी अच्छी सिट Right. डाउन कैजुअल कॉन्वर्सेशन मस्त वाइब है। Right, and we have like a few interesting topics. That's why we wanted to get like Veere along. Oh. And ki like there will be third perspective of what Definitely. what So we think, today we have my friend Veere on the guys. podcast, and Veere is an upcoming artist who's been like Yeah. basically getting into the zone and trying the social media thing. Not trying, basically making things work with the social media thing, the networking thing. So he has a lot of perspective when it comes to कि आप कैसे शुरू कर सकते हो as an artist. And he's been in the scene for long. Basically, he's been a dancer first, and then he learned DJing, and then he learned music production and whatnot. Now he's getting back into DJing. So yeah, I think he'll be a good perspective to add on. एक तीसरा perspective add on हो जाएगा काफी. Yeah, Looking forward to good conversations. Yeah, the today. third perspective in a way, because like as I was mentioning earlier, that Veere is like you know, he has been like working towards getting into all the points that we had kind of covered in the previous week. earlier podcast, and we actually had yeah. mentioned him also like Exactly, in the as one of the ways episode that 2, you yeah. could market things. So best that he comes here himself and try to share some of the things that, you know, artists are going through. Absolutely, And yeah. like how does he tackle few things, like, and plus couple of technical things which we could also Yeah, Get into. cover, because we love being geek on that, right? So yeah. Definitely. ठीक है. And, yeah. तो starting off with जो मेरा पहला question था, which is like something that I was, you know, wondering अभी कल परसों, अभी not कल परसों, but like a couple of days back Veer and I were at a party. तो हम सुन रहे थे, तो usually what we observe at parties कि उनके काफ़ी loud हो रखे होते हैं speakers, and like it is sounding good because the things are sounding too loud, कि चीज़ें loud है and stuff like that. We've also made a reel on that कि SPL levels अपने ऊपर रहते, तो we like Right. how it sounds. But I was generally discussing कि अगर हम in a studio setup, in a home studio setup अगर हम बैठे हुए हैं, how loud should we keep our monitors? Should we keep them loud enough कि हमें सब कुछ सुनाई दे रहा है, we keeping a good reference, या फिर हम उसको इतना रखें कि हम ज़्यादा longer duration तक सुन सकें? So Right. what's our optimal I level think to अगर keep तुम the levels? ऑडियो इंजीनियरिंग सीखने जा रहे हो ना, तुम्हें सबसे पहली चीज़ काफ़ी लोग बताएंगे कि अगर तुम 15 मिनट से ज़्यादा अगर एक स्पेसिफिक SPL पे अपना सुन रहे हो, तुम्हारी हियरिंग इन द लॉन्गर रन डिटोरिएट होती है. ओके, 15-20 मिनट से ज़्यादा अगर हम लोग फॉर एग्जांपल आई थिंक मे बी इट्स एट 95 dBs और समथिंग लाइक दैट, 95 होता है जो जिसके beyond I think वो हो जाता है 90 कि और 95 dBs, यूजुअली 85 एज वेल, समवेयर आई हैव सीन इट, बट वो काफ़ी कम है लेवल वैसे देखा जाए. और हम लोग जिस लेवल पे सुन रहे होते हैं पार्टीज में, इट्स सिग्निफिकेंटली रियली लाउड. आई हैव बीन टू लाइक
कॉन्सर्ट जिसमें एकदम स्पीकर के सामने खड़ा होना पड़ता है. I went to Prodigy back in वो 2000. Oh, Prodigy, by the way. nice, Like it happened in Gurgaon. I think in 2018. I'm not sure like what was the year. I think 18 or 17. बहुत पहले No, की no. बात है। I think it was actually 2013. Not even 18. Crazy. Yeah. 2013 So तो बहुत पहले की सीन बात क्या हुआ था वहाँ पे मेरे जो ईयर ड्रम्स है ना कान के वो वाइब्रेट कर रहे थे. सो Shit. उस टाइम तो मैं बहुत यंग था बट यूजुअली एक्चुअली ह्यूमंस की जो हियरिंग होती है ना वो लाइक थ्रू द एज इट डिटोरिएट्स लाइक द हाई एंड. Yeah. हमारे पेरेंट्स को कम सुनाई देगा Definitely. हाई एंड कंपेयर टू लाइक यू नो हम लोग को ज़्यादा सुनाई देगा 16 हर्ट्ज तक हम लोग को आई थिंक मेरे को तो 16 16 हर्ट्ज तक 17 तक सुनाई Decent 17 सुनाई तक देता है. सुनाई देता है, especially वो- we producers and like Yeah. listeners are very prone to that type of कि हम जल्दी acquire कर सकते हैं ये सब negative चीज right क्योंकि हम उतना सुनते हैं, हम कंज्यूम उतना करते हैं बहुत ना ज़्यादा. हेडफोन्स इन So that's why like जब भी वगैरह. मैं पार्टीज में जाता हूँ तो मैं हमेशा मैं वो noise cancellation वाले That's suppressors great. लेके That's चलता हूँ great. हमेशा ही. हाँ मेरे को याद है. So हाँ, मे- हाँ, मेरे हाँ. साथ हमेशा voice- जब भी मैं हाँ. निकालता हूँ people like bro ये क्या है bro ये noise suppressor है like Because like, I think it's an it's a important thing thing to right It's take because care we of have to well. protect It's the our thing. ears as Yeah, that's what much I as was we coming can. up with because like मैं उसके बाद भी एक recently एक party में गया था like in Hoskas I think Oh, Oro Hoskas. Kitchen right Oro Nice, Kitchen nice. and Second home. वहाँ पर मेरे को फ्रेंड मिक्स कर रहा था एंड उससे पहले के मैंने एक्ट सुन रहे थे वहाँ पे तो इतना गलत उनका मिक्स था Levels, और लेवल्स थे कि मेरे बिकॉज आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम इन द स्टूडियो आई एम सो फोकस्ड ऑन मास्टरिंग तो मास्टरिंग में इतना सेंसिटिव सुनना पड़ता है वहाँ पे भी मेरे कान वाइब्रेट कर रहे थे तो मैं And- सुन रहा था लोग yeah, कि yeah. उनके कान वाइब्रेट नहीं कर रहे कि एनीवन नॉट फीलिंग नहीं अनईजी वो कर नहीं सकते क्योंकि क्योंकि ना वो लोग हैबिचुअल हो गए हैं उस चीज़ के Exactly. हैबिचुअल प्लस हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी हार्श है और उस True, या but फिर like levels भी ज़्यादा levels were so loud Loud, yeah. that I was uncomfortable just standing there. And when my friend came and he was mixing it, then it went fine because definitely Like he knows what's a good level to keep things at. So coming to the point, the idea is that like कि अगर हम इतना ज़्यादा loud सुनेंगे तो हम अपनी एक तो कान को ख़राब कर रहे हैं प्लस हम जो राइट आउटपुट सुनते हैं गाने का वो हमें नहीं मिलेगा. काफ़ी लोग तूने देखा है ये करते हैं गाड़ी में instead of playing with the volume they will increase the bass the mids and the treble all of them अच्छा all of ताकि them और वॉल्यूम बढ़ जाए. हाँ. Crazy. so अच्छा ये वाली ट्रिप नहीं बता दी होगी. अब तेरे को because you're a producer right Yeah. you might be changing the equalizing the things in your car मतलब it's but just like यार EQ में So, 7 के उसको भी 8 boost कर बैंड दिया. पूरे और boost कर पूरा दिया. बहुत ही boost हो बेसिक गया. एग्जांपल लेते हैं एक ड्राइवर चेंज करता है ना तो बेस भी बढ़ा देगा मिड्स भी बढ़ा हाँ देगा हाँ और मैं heads समझ भी. गया हाँ. exactly. so that's the thing we are talking about कि साउंड प्रेशर लेवल ऑल्सो रिलेट्स विद द कि हम लोग का कैसे सुनाई दे रहा है हमारा ट्रैक तो हम जब स्टूडियो में बहुत ही ज़्यादा लाउड सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे उस बारे में टॉपिक था ना तेरा जो exactly. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट बिकॉज काफ़ी प्रोड्यूसर्स काफ़ी जो फेमस प्रोड्यूसर्स हैं लाइक मिक्स विद मास्टर्स पे अगर उनके तुम वो सुनो क्या कहते हैं Interviews, इंटरव्यूज सो दे आर लाइक I generally like to listen to music really loud because I want to listen to the track where the audience is listening to. But then he was like, but I had another perspective because I was listening to music so loud for so long that I had forgotten what was the feeling, you know, of like not being listening to it in another environment or it being played somewhere else. Plus he lost some sort of perspective. So idea ये है कि तुम सबसे कम लेवल पे भी सुनो ट्रैक को कुछ टाइम तक क्योंकि अगर तुम कम लेवल पे सुनोगे ना एक ट्रैक को कुछ टाइम तक तो यू वॉन्ट बी लाइक कि इसकी लाउडनेस क्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. यू विल ऑलवेज लिसन टू इट इन द बैलेंस्ड वे. डेफिनेटली मतलब कम लेवल पे सुनते रहो जब whenever you're mixing and just crank up the levels whenever you need perspective मेरे हिसाब से. एग्जैक्टली या पर्सपेक्टिव के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं जब भी अपना ट्रैक मुझे लगता है कि हाँ भाई एक सर्टेन लेवल में मिक्स हो गया है तो मेरा स्टूडियो जस्ट यहाँ पे है तो लाइक 5-6 फुट के बाद मेरी बालकनी आती है तो मैं बालकनी में सुनता हूँ. हाँ ये भी Volume काफी पूरी- कूल टेक्निक है कि तुम सुनो. वॉल्यूम बढ़ा के एंड जस्ट टू फिगर आउट कि हाँ यार अगर ये म्यूजिक मेरा कहीं दूर से बज रहा है तो Nice. क्या मैं उस पर ग्रूव कर पा रहा हूँ कि नहीं. Yeah. तो इससे मैं अपने कान बचा लेता हूँ और प्लस आके मैं वॉल्यूम अपनी स्टैंडर्ड लेवल पे रखता हूँ बिकॉज Yeah. अपना सारा मोस्टली म्यूजिक मैं उसी लेवल पे सुनता हूँ. तो सरप्राइज होगा इस बात को सुन के कि मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने ये टेक्निक हम लोग को बोली थी Oh, जब मैं nice. स्टडिंग कि लाइक कि तुम अपने गाने को हर स्टेट में सुनो. Exactly. कॉरिडोर में जाकर सुनो ये कैसे सुनाई दे रहा है अंदर. गेट के पास खड़े होकर सुनो एकदम स्पीकर के Exactly. साइड में खड़े होकर सुनो बाहर सुनो तो यू शुड बी एबल टू डेफिनेटली मतलब जिन Yeah. पोजीशंस में आप यूजुअली गाने सुन रहे होते हो कंज्यूम कर रहे होते हो यू शुड बी Exactly. एबल टू फील योर म्यूजिक एंड Right. लाइक उससे एक अच्छा रेफरेंस मिल जाता है. राइट एंड ऐसी काफ़ी टेक्निक्स भी है कि मैंने अभी रिसेंटली देखा था लाइक यू कुड कट आउट द लो एंड कम्प्लीटली कट आउट द हाई एंड इफ योर मिड्स in your mids everything is sounding वो good मैंने एक वीडियो भी but देखा था somehow कि- didn't really like मेरे को I भी didn't get habitual to it, मेरे yeah. को भी समझ नहीं आया मेरे को लगा नहीं कि क्या? यार मुझे मैं बताता हूँ exactly थोड़ा बेसिकली breakdown एक ये अपने वो आते हैं ना
ऑरा टोन्स कौन से ऑरल टोन्स, वो कौन से मॉनिटर्स है जिसमें सिर्फ मिड्स, जो बहुत ही मिड फोकस है? NS10 you mean? नहीं NS10s भी है, डेफिनेटली द NS10s, और एक और आते छोटे से मॉनिटर्स नहीं होते उनका, बेसिकली वो बनने बंद हो गए, अब कोई और कंपनी बनाती है उसको, तो वो ये बोल रहे थे उसके अंदर कि आप अपना मिड रेंज सुनो, क्योंकि मिड रेंज ही आपको यूजुअली सुनाई दे रही होती है मोस्टली स्पीकर सिस्टम्स या फिर जो कंज्यूमर आपके वो होते हैं ईयरफोन्स या स्पीकर्स होते हैं उनमें मिड रेंज सुन रही होती है, फ़ोन पे भी आपको मिड रेंज ज़्यादा सेंट्रिक सुनाई देता है। तो कहता है अगर आप मिड रेंज के हिसाब से मिक्स करोगे तो आपका मिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आएगा, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव। What I came across was this technique that I was saying कि लोगों ने लो कट कर दिया एक सर्टेन पॉइंट तक, मे बी लाइक 900 हर्ट्स, मे बी आई थिंक मे बी आई सेइंग टू मच, बट लाइक हमने लो एंड काट दिया और हाई एंड काट दिया, और अब अगर हम वो सुन रहे हैं अपने स्पीकर्स में वो सही साउंड कर रहा है, अगर ऑल दी थिंग्स आर साउंडिंग गुड टू यू इन द सेंस कि सारी चीज़ों का लेवल सही साउंड कर रहा है। ऑफ कोर्स सुनाई नहीं दे पाएगा कुछ चीज़ तो, बट आई हैव नॉट स्टिल प्रैक्टिस्ड इट, बट या दिस समथिंग दैट पीपल कैन ट्राई। मैं अभी उत्कर्ष की स्टोरी देख रहा था, वही बेस लीला का फाउंडर या, तो उसने ना मतलब स्टोरी देख रहा था, उसमें वो कह रहा था कि अगर आपको चेक करना कि आपका रेफरेंस ट्रैक का बेस और आपका बेस सिमिलर है तो आप सब बेस के लिए कह रहा था, है ना, अपनी टेबल को पकड़ो, लाइक अगर वो उसी लेवल पे वाइब्रेट कर रही है और तुम्हारा ट्रैक भी उसी लेवल पे रहता है तो एक सर्टेन लेवल पे तुमने वो मिड रेंज एक्वायर कर, these are all many, these are like acquired techniques जो आप अपने सेटअप और अपने उसके हिसाब से फिगर आउट करते हो कि अच्छा मतलब सब बेस आपको नहीं सुन सकते, हमारे पास सब तो है नहीं, बट आई थिंक यू कैन जस्ट परसीव इट थ्रू कि अच्छा ये चीज़ है, इस हिसाब से वाइब्रेट हो रही है। एग्जैक्टली, तभी मैं गाड़ी में बहुत सुनता हूँ अपने गाने, स्टफ लाइक दैट, क्योंकि गाड़ी में अगर मैं लाइक एक बहुत ही क्रैंक करके लेवल को सुनूं तो आई कैन रियली लाइक क्लियरली सी कि वो कितना वाइब्रेट कर रहा है, बिकॉज गाड़ी भी वाइब्रेट करती है, गाड़ी के पार्ट्स भी वाइब्रेट करते हैं। तो मेरी एक पुरानी गाड़ी थी लाइक स्विफ्ट डिज़ायर, उसमें जो गेट्स है ना, उसकी गेट्स में ना वो बेसिकली इतनी प्रॉपर वो नहीं थी कि मतलब फीलिंग हो कि वो वाइब्रेट इजीली तो वो भी हिलते थे, तो उससे मेरे को रेफरेंस लगता था कि बेस है कि नहीं है, बढ़िया कि कितना वाइब्रेट कर रहा है मेरे गाने में और कितना तेरे गाने में। नहीं बहुत सही है, मतलब काफी जल्दी फिगर आउट कर लिया आपने, है ना, बढ़िया टेक्निक से। सो लाइक व्हाटएवर यू हैव यू नो जस्ट यूज इट। अगर तुम्हारे पास 5.1 स्पीकर्स पड़े हैं तुम अपने पार्टी में भी प्ले करके देखो। सो यूजुअली मैं अपने जो क्लाइंट्स उनको प्री मास्टर या प्रीमिक्स या फिर मास्टर भेज देता हूँ तो बोलता हूँ कि भाई इसको just play it in your DJ set. Like for example you're making a DJ set, I mastered something for you and you tried it on a big set of speakers, and it was like bro it was sounding like great. I was someone was telling me maybe the highs could be more blah blah blah. So it's really nice. just वो direct head on comparison हो जाएगा ना with all the tracks that they're playing, और एकदम से आपका ट्रैक डाला तो उनको समझ में आ जाता है एकदम से कि यार इसमें ये चीज़ें कमी है। So yeah, I mean हमारा टॉपिक लाउडनेस पे था, तो लाउडनेस के बारे में we can just conclude this thing कि just don't listen to things too loud in the like as you're saying that you're using couple of in-ears. Even I don't have one because I don't go to that many parties, but it's always nice to have something. Definitely, you never know कब तुम्हारा बेकार साउंड इंजीनियर को मिक्स कर रहा हो। Sometimes हमारा जो like being a DJ, like हमारे पास एक मॉनिटर होता है लेफ्ट साइड में और उसमें ना मिड्स होते हैं ढंग के ना उसमें बेस रहता है, क्योंकि वो इतना लाउड होता है वो एक पॉइंट पे खत्म हो जाता है। बूथ मॉनिटर्स या व्हाट अबाउट यूजिंग हेडफोन्स like still like हेडफोन्स भी यूज हो रहे हैं बट एक रेफरेंस चाहिए होता है ना कि हमारा लेवल क्या जा रहा है। Exactly, तो वो भी चीज़ होता है, कई बार हमारे हेडफोन भी इतना उस हिसाब से नहीं सुना पा रहे होते। सो समटाइम्स मेरे को सप्रेसर अंदर डालना पड़ा और फिर हेडफोन डालना पड़ा क्योंकि उसकी हाईज इतनी तेज आ रही है बूथ मॉनिटर्स की। हाँ कि आप वो ठीक है, इट्स डेफिनेटली अ गुड थिंग टू हैव अगर आप वो नॉइज सप्रेसर अपने साथ रखो, वो रखो। प्लस वो भी वैसे काफ़ी नहीं है। अगर पार्टी, मैं एक पार्टी में गया था, टेक्नो पार्टी थी, मैं उस प्रॉपर्टी का वेन्यू का नाम नहीं लूँगा बट यू गाइज नो, बट द थिंग इज लाइक क्लिप हो रही थी पूरी पार्टी, क्लिप हो रही थी वो पूरी पार्टी। और आप कह रहे थे ना कि लोग कैसे सुन रहे थे, मे बी दे आर यूज्ड टू इट। मैंने उस पार्टी में एक अतरंगी बंदा देखा, वो स्पीकर के सामने खड़े होकर सुन रहा था उसको। हाँ काफ़ी लोग हैं एंड आई वाज लाइक ब्रो क्या सीन है। सो आई मीन ये क्या स्केल है यार, अगर तुम म्यूजिक बनाते हो ना तो उन्हीं लोगों के लिए एडवाइस है। हाँ एग्जैक्टली, वी आर नॉट लाइक डूइंग अ समाज सेवा, लिसनर्स को कुछ नहीं शॉर्ट, कोई शॉर्ट नहीं। बट अगर तुम अपने या इफ यू आर टेकिंग दिस थिंग सीरियसली इन द कंटेक्स्ट ऑफ कि तुम्हें तुम्हारे कानों को यूज करके पैसे कमाने या फिर डू बिजनेस, अल्टीमेटली आवर ईयर्स आर लाइक रियली इंपॉर्टेंट एज म्यूजिक प्रोड्यूसर्स। क्योंकि जब जैसे अगर चीज़ें डिटोरिएट कर रही है ना तो तुम
जज नहीं कर पाओगे एट द राइट लेवल. सो या दिस इज व्हाट वी कैन से अबाउट लाउडनेस. Exactly. So एक और चीज़ थी जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे आई गेस. Right. And we just had a discussion because when Veerya was like in the studio तो हम डिस्कस ही कर रहे थे कि how important is music theory because as we just saw the synth तो ये अपनी बात चल रही थी ना कि यार right now. अभी तो जस्ट लाइक हमने synth देखा तो it was like his first question was कि यार मैं इसमें अपना MIDI कनेक्ट कर सकता हूँ because I'm not very good at music theory. Interesting topic. But I really need to like get things going क्योंकि ये है ना कि अगर आप प्रोड्यूस करो यू कम अक्रॉस अ न्यू synth उसकी साउंड अच्छी है बट यू कैन नॉट ऑलवेज यू नो पुल ऑफ सैम्पल्स फ्रॉम स्प्लाइस या फिर आप कॉर्ड पैक्स वगैरह नहीं लगा सकते तो यू नीड सम काइंड ऑफ एबिलिटी टू प्ले. हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक बिकॉज you know you've been trained आप जब like you must have been trained in Berkeley उन्होंने आपको पढ़ाया होगा music theory and ये सब. Not really because it was more music production centric thing. Oh, nice. And somehow you are expected to no music theory know music theory in certain terms but like to be honest the way I mean Berkeley की बात अलग से करी जा सकती है but like उनका आइडियोलॉजी ये नहीं है कि हर एक को अंडरमाइन करना इन द सेंस ऑफ कि तुम्हें म्यूजिक थ्योरी नहीं आती और तुमको आती है बिकॉज अल्टीमेटली म्यूजिक इज म्यूजिक एट द एंड एंड दैट रियली रिफ्लेक्ट्स इन द वे आई काइंड ऑफ लाइक teach my kids as well कि अगर कोई नॉइज म्यूजिक भी बना रहा है so he is doing something we can't just really say कि इसको म्यूजिक थ्योरी नहीं आती तो ये बेकार बंदा है. उस कल्चर का माइंडसेट चल रहा है. आई थिंक ये कितना अच्छी ओपन माइंडसेट है कि they don't care about कि अगर आपको म्यूजिक थ्योरी आती नहीं it's like that whole discussion around the sync button thing कि अगर आपको beat matching आती है नहीं आती है ना because like in the DJ scene it's like really frowned upon कि अगर आपको वो beat matching नहीं आता आप DJ कैसे हो ये कैसे आप sync क्यों दबा रहे हो. प्रोडक्शन में भी मैंने इतना बीफ तो नहीं सुना वैसे मतलब चीजों को लेके. मैं वही कह रहा हूँ ultimately more open. तो मैं वही कह रहा था कि the question basically was कि how important is it and if not as beat producers हम कैसे अप्रोच करते हैं how do we get around हम अपने क्या hacks हमने बना रखे I think we can discuss that. Well it's a really interesting topic because I came across this reel the other day I can mention it here but like उसमें like the way that people usually perceive this thing is there are two side of people. One would be saying that कि म्यूजिक थ्योरी सबको आनी चाहिए और जिसको म्यूजिक थ्योरी नहीं आती वो सही नहीं कर रहा म्यूजिशियन नहीं वो तो ज़्यादा अंडरमाइन वाली चीज़ हार्ड नहीं देखा मैंने बट इन जनरली कि लाइक दे वुड से कि दे आर नॉट डूइंग गुड या फिर ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे ऐसा वाला ट्रिप है. बट देयर आर मेनी डायमेंशंस टू इट लाइक मेनी पीपल वांट टू डाइव इनटू इट मेनी पीपल फील कि अगर इफ दे वेंट इनटू म्यूजिक थ्योरी it might spoil what they already have in terms of the way they think about around music. So when they came into the ideology of how music came along they came from a vibe, right? Definitely. And if I teach a Veerya these 4 or 5 chords which are sounding general at the moment and they are supposed to be music theory he'll be like these are so boring for me. I don't really jam. Exactly. So they might like get pushed down really early and that's what happens in क्या पता मैं म्यूजिक में इसलिए आया क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी मुझे एक्सेस दे रही है तो मैं बना पा रहा हूँ उस ईज से. It's just कि everybody has a process when it comes to you know ideating और मतलब एकदम से अलग अलग जोन होता है सबका मे बी some people are using samples from the get go and then उसमें से chords figure out कर रहे हैं. I wanted to say that कि अगर तुम्हें म्यूजिक थ्योरी थोड़ी बहुत भी आती है ना तो तुम अगर सैम्पल्स का भी यूज करते हो तो you'll get so creative definitely that like it's like gonna double down on the way you think you know? it's a tool that you should definitely there's keep certain up for example there are certain scales that blend with each other you know and if you are saying कि मेरे को क्वेश्चंस आते रहते हैं सर आप मेरे ये बीट अलग टोन में और मैं स्केल में गा नहीं पा रहा हूँ सो दे डोंट हैव एनी आइडिया क्या हो रहा है उनको एक्सप्लेन भी अगर मैं कर दूं कि ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज क्या मतलब क्या ट्रांसपोज करना है बेसिक आइडिया आपको होना जरूरी है. इफ यू नो 12 नोट्स 12 नोट से स्टार्ट करो यार वो तो डेफिनेटली दैट वो तो मैं भी बोलूँगा कि सबको ही होना चाहिए बट इट्स नॉट कि आपको सारे स्केल्स और वो सब आ जाए बट आई थिंक आई वुड लाइक टू डायरेक्ट दिस क्वेश्चन टू वीरे कि जैसे आपको बेसिक तो पता है यू आर प्रीटी फेमिलियर विद बेसिक लाइक मतलब नोट्स पता है एंड यू हैव एन आइडिया कि ये कुछ भी नहीं. ये कैसी बकवास बात. ये बात है जब मैंने म्यूजिक स्टार्ट करा था मुझे तो ये सब नहीं आ रहा था. अभी तो पता है अभी के हिसाब से पता है ना बट आप मैं वो नहीं कह रहा 2 साल का पीछे का डायरेक्ट कर दे वो नहीं लेट्स जस्ट टॉक अबाउट राइट नाउ लाइक राइट नाउ यू आर फेमिलियर विद ये नोट्स हैं ये है एंड आपको आप सुन के ये बता सकते हो एटलीस्ट कि ये की में है या नहीं है. हाँ ये पता चल सकता है जनरल टेम्परामेंट अराउंड म्यूजिक हाँ यार ये ठीक लग रहा है नहीं ठीक है बट यू डोंट नो हाउ टू मेक कॉर्ड्स और की स्केल्स में क्या नोट है क्या नहीं चल रहा. सो व्हाट इज योर हैक हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग थिंग्स बिकॉज आई नो 2 राउट्स एक आपका मिडी का और एक द प्लगइन दैट यू यूज. या सो डेफिनेटली लाइक द थिंग इज लाइक जो नोट वाली चीज़ तुमने बताई कि मुझे पता चल जाता है कि ये वाला नोट की में है कि नहीं वो मुझे ग्रेजुअली प्रैक्टिस से ही आया. डेफिनेटली सुन के ही अंडरस्टैंडिंग से है तो वो मैंने सीखा नहीं कहीं से वरना मैं सीख पा सकता था.
तो I started with like how should I learn music theory. I tried it but it was like too boring for me. And I was like अब मैं कौन सा hack use करूँ. Then I got to know there is a like a MIDI controller in the market called Novation का, और Novation में ना launch किया तो उसमें scale mode होता है. हाँ. तो like dude now who can stop me to make music. और उसमें chord mode भी. I was like bro अब कौन रोकेगा मुझे. ठीक है क्योंकि अल्टीमेटली आपको चाहिए ना कि हाँ आप क्रिएटिवली अपने आप को मैं जैम कर सकूँ, एक्सप्रेस कर सकूँ, यू नो, फटाफट. मुझे जो हमिंग साउंड आ रही है राइट, अब मेरे को म्यूजिक थ्योरी और मेरे पास नहीं है. मेरे पास एक नॉर्मल मिडी है जिसमें वो ऑप्शन नहीं है. मैं प्ले कर रहा हूँ, मैं फिगर आउट करता रह जाऊंगा. वो आइडिएशन चलेगी, ड्रेन आउट होगी. तो लाइक आई सैट विद माय डैड एंड लाइक कि ऐसा से टेक है ये मुझे खरीदनी है. मेरे को म्यूजिक में आगे बढ़ना है जीवन में ना, तो मेरे को वो चाहिए, मुझे बहुत नीड है उसकी. तो उन्होंने बोला ठीक है भाई ले ले. तो मैंने लिया, मैंने उसको लगाया एंड मैंने कोई एक नॉर्मल सी लाइक एक इंस्ट्रूमेंटल मेलोडी लगाई. और उसके बाद जैसे ही मैंने उसको स्केल मोड ऑन करा ना, आई वाज लाइक ब्रो अब मजा आ रहा है. समझ रहे हो, पहले स्ट्रगल लग रहा था. Things are making sense. Just makes things more enjoyable. बट अब ये है कि अगर किसी के पास हाँ बोल. मैं वही कह रहा था कि if you have a MIDI keyboard या फिर जो भी, if you have like access to that tech कि आप scale mode on करके या chord mode basically just snaps you on to the scale, it keeps you in the right scale. चाहे आप कुछ भी प्ले करते रहो. Solos मारे bro 8 के. Kind of like a hack. But अगर आपके पास वो नहीं है, I would just like to share this trick कि आप वो Ableton में भी कर सकते हो. Basically Ableton has a MIDI, it has its own scale, has a MIDI and chord as well. क्या बोलते हैं उसे, MIDI the device? It's a MIDI effect. It's a MIDI effect, yeah. And it does the same thing. You can just like snap it onto any MIDI channel. I wanted to add that कि अगर किसी को म्यूजिक थ्योरी भी आती है बट उसने ज़्यादा स्केल्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं, लाइक डिफरेंट स्केल्स के ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा. सो इफ समवन वांट्स टू मेक समथिंग इन लाइक मिडिल ईस्ट इंडोरियन स्केल एंड दे वांट देयर, सो बेसिकली इन स्केल क्या होता है कि जो भी कीज नहीं आनी है ना उस स्केल में, वो उसके एडजेसेंट स्केल पे सेम प्ले होती है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर सी और सी शार्प सेम स्केल में आते हैं तो वो सेम सी शार्प की अच्छी चीज है बिल्ट-इन की, राइट. बट व्हाट इफ यू आर एफएल यूजर? फिर कुछ नहीं है. एफएल के लिए हमारा चैनल नहीं है एफएल. तो लाइक तो मैं बताता हूँ, लाइक मैं लाइक एफएल गैंग में ही था मैं पहले. अब तो मैं विल्टन में शिफ्ट हो गया हूँ क्योंकि मुझे कुछ दिक्कतें लग रही है उस डॉ में. बट या लाइक इफ आई टॉक अबाउट एफएल तो लाइक देयर इज अ प्लगइन कॉल्ड स्केलर. तो आप स्केलर यूज़ करो फुल पावर, अपनी कॉर्ड्स इस्टेब्लिश करो. उसमें तो जॉनर्स लिखे हुए हैं, सॉन्ग राइटर्स लिखे हुए हैं, मूड्स लिखे हुए हैं, उसमें क्या क्या एक्सेसिबिलिटी है, आप उसको फिगर आउट करो. एंड अगर आपके पास मिडी भी नहीं है, यू कांट अफोर्ड अ मिडी प्लेयर, तो आप प्लग इन यूज़ करो वो वाला और उसके बाद फिगर आउट करो. म्यूजिक नहीं रोक सकता आपको, मतलब अभी टेक है काफ़ी. सी या डेफिनेटली वो एक बहुत ही सही चीज़ है. एंड लाइक आई थिंक इट at least is enabling those people जिनको कोई आइडिया नहीं है at the moment म्यूजिक थ्योरी का. बट अब एक लेवल तक आके उसके आगे you will always look forward to improving yourself as an artist, right? Like if not now, maybe in 1 year when you, of course, like you need to make beats and like the idea is about like making as much content as you can and as good content as you can. But एक time पे आगे you would always want to make it more interesting, right? तो जो तू बोल रहा था मेरे को कि स्प्लाइस का, अगर मेरे पास लेट्स से स्प्लाइस, आई हैव लूप मास्टर, आई हैव कपल ऑफ दीज थिंग्स, if I have the right idea of how I want to harmonize with those particular patches that I'm playing with, let's say if I was telling you earlier this thing कि कभी कभार मेरे को इंस्पिरेशन नहीं आती और मैं स्प्लाइस के सैम्पल्स को सुन रहा होता हूँ और फिर मैं उसको रिक्रिएट कर देता हूँ. I recreate the beats as well, so that allows me to like train myself. Plus like उसी म्यूजिक थ्योरी में क्या क्या उन्होंने कर रखा है. For example, we are coming out with this reel where I made like AP Dillon's one of the track, right? Yeah. So it was a really good like exercise for me to just exactly do what they're doing, to figure out what kind of chords they're playing. If they're playing like chords in inversions, if they're playing chords with like different kind of bass notes, तो बहुत सी practice है. I think ये सब चीजें लोग कर सकते हैं. तो या मैं मतलब अगर इसके एडवांटेजेस है तो इसके यही डिसएडवांटेज है कि अगर मैं कभी स्प्लाइस का सैंपल सुन लूँ तो मैं उसको इमीडिएटली रिक्रिएट नहीं कर सकता बिकॉज मैं लेजी हो चुका अपनी टेक पे. बट तू उसको हार्मोनाइज तो कर सकता है ना. तूने जब बोला कि इट्स बेसिकली ही इज टॉकिंग कि अगर इफ यू आर टू रिलायंट ऑन द टेक देन यू कैन नॉट हार्मोनाइज, या फिर हार्मोनाइज कर सकते हैं इफ यू. अभी ही इज गुड एट इट. तो कभी हम जब भी साथ में प्रोडक्शन करते हैं तो मैंने बोला ब्रो ये सैंपल तो लग गया बट ना मुझे इसमें अब थोड़ी और मेलोडी खेलनी है, तो जस्ट तू बैठ जा, तुझे पता है हिसाब किताब जल्दी से तू फिगर आउट कर लेगा. देख ये कोई कर लेता है. अब देखिए ऐसा सीन नहीं कि तू डिसेबल है और मेरे पास मैं करना नहीं चाह रहा. हां, तो सो दैट्स द थिंग. तो मैं इट्स अबाउट माइंडसेट. तो मैं उस माइंडसेट को ही
टैकल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी वो माइंडसेट था एक टाइम पे, राइट। और फिर मैंने उसको टैकल कैसे करा, मैंने कैसे बता ही करा रहा भाई, था कैसे करा कि बताइए। एक दिन मैं तंग होके बैठ गया कि Okay. मेरे भाई कि आज मैं आई सीखूंगा। वांट आज टू सीखूंगा फिगर आउट व्हाट द हेल Swat. इज हैपनिंग। ओके, तो मेजर और माइनर स्केल्स के अलग रूल्स होते हैं। अगर तुम रूल्स को एक बार समझ जाओ देन एवरीथिंग सीम्स क्लियर, बिकॉज अगर किसी भी की के रेफरेंस में एफ शार्प माइनर बनानी है तो एफ शार्प स्टार्ट करो भाई। हाँ डेफिनेटली हाँ नहीं, And- मतलब and- इतना and तो with those इतना तो आ जाता है। इतना तो आता है ना, तो मतलब कुछ लोग को इतना भी नहीं आता है यार। हो सकता Yeah, है, yeah, एग्री। अब तो तेरे को वो भी बताना पड़ेगा तेरे को कितना आता है। ओह भाई, लेट्स गो। You'll have to prove it. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बेसिक चीजें लोग भागते हैं उससे कि नहीं हाँ मेरे को मतलब it's आपको भागना नहीं चाहिए, मतलब उससे लाइक कमिंग बैक टू समिंग अप द टॉपिक Yeah. कि म्यूजिक थ्योरी डेफिनेटली इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आप Definitely. कहाँ तक खींच लोगे बिना उसके, Exactly. इट विल डेफिनेटली गिव यू अनदर एडवांटेज, अनदर एज एज एंड व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग। वो आपको Yeah. एक एड ऑन It will लेयर open many doors. आपको ये भी कर Yeah. सकते हो, ये नहीं तो ये भी कर सकते हो। इफ यू आर अवेयर अबाउट सम कॉर्ड इन्वर्जन, अगर आपको पता है कि अच्छा इसको मैं ऐसे भी साउंड करा सकता हूँ, तो यू कैन मेक योर अरेंजमेंट, आई मीन द sounds better, arrangements Yeah. better. Also, like if you know music theory, so you can get the access to jam with other musicians. Exactly. as वो well, भी right? If exactly, anyone that is also a- for me, if वो any चीज़ है। client comes in and if he says that कि ये these are the chords like I want to make music on, I don't know the scale. No. True, ये मैं लाइव फंस लाइव जाऊंगा। फैक्टर भी बहुत मैं important फोन है। मिलाऊंगा। क्योंकि लाइक वी नो हमारा एक दोस्त है मयूर, तो उसको हम ही इज अ वेरी गुड गिटारिस्ट एंड लाइक वो बढ़िया वो करता है। मेरा- मैं उसको काफी phone बहुत मतलब मिलाता उसको सही हूँ। म्यूजिक थ्योरी, ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक थ्योरी, Yeah. और उसने खुद से सीखी है, मतलब इट्स नॉट हाँ। लाइक उसने कहीं से Exactly. किसी ने सिखाई उसे, तो इट्स डेफिनेटली वेरी डूएबल थिंग। Yeah, तो it totally is. उसको लाइक इट्स वेरी फन टू बी अराउंड हिम व्हेनेवर वो होता है अगर, और हम कुछ प्ले कर रहे होते हैं, फटाफट उसको कर बस देता है। स्केल बताओ, ये ऐसे ऐसा नहीं, क्विकली स्टार्ट्स टू ये- जैम ऑन, Yeah, तो ये शक्ति है भाई See, म्यूजिक थ्योरी। मतलब वही है अल्टीमेटली बात उस पर आती है कि कितना तुम अपने आप को फोर्स कर सकते हो बैठ के फिगर आउट करने के लिए। अगर तुम थोड़ा बहुत इतना कर सकते हो, लाइक से मैंने क्या करा था, मैं बहुत ही जल्दी बता देता हूँ। लाइक कि पहले तो मैंने थोड़ा फोर्स करा अपने आप को कि ट्रेन करने के लिए कि ओके ऑल दीज कॉर्ड शेप्स आर देयर, सो दैट व्हेनेवर आई हैव टू प्ले दीज कॉर्ड शेप्स इमीडिएटली मैं प्ले करके देखूँ कि अलाइन हो रही नहीं हो रही। ठीक क्योंकि आधे सारा टाइम हमारा लाइक म्यूजिक थ्योरी है क्या, when we want to make things we want to actually make chord progressions True. most of the time and chord progressions are made in sequence. हाँ If you don't make sequence things don't make sense, डेफिनेटली right? And the idea of like playing different chords everywhere in different timings is actually the chord progression. अगर तुम्हें पता नहीं होगा तुम्हारी शेप क्या प्ले करनी है, तुम भूल जाओगे कि पहली chord कौन सी प्ले हुई थी. ट्रू। So you are not able to make chord progressions unless you train your hands first and your brain first to acknowledge कि क्या there's a chord way है. to look at it कि आप Exactly. पैटर्न रिकॉग्निशन वाली वही चीज ना, और अपने आप में muscle machine memory training में करनी बिठा- पड़ेगी. muscle memory में बिठाओ सत्यम जी मैं 5 से 6 के ट्यूशन में आऊंगा आपके पास ये सीखने। ट्यूशन लगा ट्यूशन लगा दो। खतरनाक। तो ठीक है, तो अनदर अच्छा सा इम्पोर्टेंट scene, ये नहीं पता था डिस्कशन मुझे। लाइक जो मेरे को इससे समझ में आ रहा है कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्सिंग आवरसेल्फ इनटू जोन एंड माइंडसेट की Right. क्या अराउंड है चीज़ों का, आई फील अ लॉट ऑफ producers and a lot of producers, हाँ producers या फिर कोई भी who's like whoever is in a creative Yeah. field struggles with being regular at it. है ना कि how do you stay regular at it, consistent at, let's say अगर हम beat making example लें तो generally because Veer also Yeah, I like think a year this back is a good question Veer for also Veer, started yeah. क्योंकि I think we were having this discussion, आप कह रहे थे यार मैं क्या करूँ, मैं ऐसे Oh, मैं zone out shit. हो गया हूँ, मेरे को गाने बनाना शुरू मैं करने रो हैं। रहा था उस टाइम तो मैं क्या करूँ यार थोड़ा सा अपना production में। जोन एक्सप्लेन करो, क्या जोन था, मतलब व्हाट हैपेंड बेसिकली, कैसे बाहर निकल गए थे आप प्रोडक्शन से, व्हाट अर्ज डिड यू हैव कि मेरे को वापस आना। बहुत सिंपल टेक्निक बताई इसने मेरे को। नहीं टेक्निक नहीं बताई, मैं तो टेक्निक पे आते हैं, बट मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज दैट जोन, Zone सो की दैट मैं बना अदर नहीं पा पीपल रहा था। कैन रिलेट, या मतलब व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि आप उससे बाहर निकल गए जोन से। तो वही बता रहा हूँ मैं कि आई वॉज नॉट रेगुलर एट मेकिंग म्यूजिक, और समटाइम्स मैं अपने आप के म्यूजिक को इतना ही लेके जज ही हो रहा था, लाइक आई एम नॉट मेकिंग गुड, ये सीन है। और मेकिंग गुड क्या, एक महीने में एक बीट बना के बोल रहा हूँ कि यार अच्छी नहीं है, दूसरी भी नहीं बना रहा अगले दिन चेक करने के लिए शायद मैं अच्छा हो सकता हूँ तो वाला डिप्रेशन हिट कर रहा था एज एन प्रोड्यूसर। ऐसा चिल थी जिंदगी, कोई सीन नहीं था, कोई गम नहीं था। फिर क्या हुआ, लाइक आई कॉल्ड हिम, लाइक मैं बोला यार एक ऐसा जोन आ रहा है कि लाइक आई वांट टू मेक म्यूजिक बट आई एम स्टक समवेयर, मेरे को जोन समझ नहीं आ रहा क्या हिट करना है, कहाँ से स्टार्ट मतलब करूँ। ही जस्ट क्यूरियस कि मैं शुरू कैसे करूँ, मैं शुरू क्या कैसे, करूँ, हाउ start डू आई कैसे बिकम करूँ? रेगुलर एट इट, एग्जैक्टली, रेगुलर तो छोड़ो, ये मैं तो ये पूछ रहा था भी स्टार्ट कैसे करूँ, सीन कैसे स्टार्ट होगा। इसने बोला कि बस 5 बीट्स बनाओ और सुना दो।
पाँच म्यूज़िक बनाओ, लाइक 5 to 6 ट्रैक्स बनाओ और मुझे सुनाओ कैसे है। एंड मैंने बोला ठीक है, मैंने ऐसा समझा कि मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको 5 म्यूज़िक सर्व करना, तो मैं एक टास्क ले लिया। जब मेरा टास्क ओरिएंटेड माइंडसेट में गया, फिर उसके बाद लाइक आई स्टार्टिंग मेकिंग लाइक 1 बीट, लाइक 2 दूसरी बीट बनाई, तीसरी बीट बनाई। आई गेस मुझे लगा शायद 2 हफ्ते में मैंने आई गेस 3 से 4 ट्रैक्स बना रहे थे। एंड बाय द टाइम ही वाज मेकिंग द सेकंड और थर्ड बीट, वो ऑटोमेटिकली उस जोन में आ Better गया हो कि रही यार थी। अच्छा ये तो बढ़िया है, वो है। सो इफ यू आर स्टक समवेयर या फिर कुछ भी है, तो यू कैन जस्ट स्टार्ट, कुछ भी एक टास्क उठा लो कि हाँ ये कर लेता हूँ, बट आई थिंक हाँ फिर यू कैन लाइक कंटिन्यू ऑन दैट। फिर उसके अराउंड, और हाँ लाइक ऐसा भी नहीं कि मैं जब बैठ रहा था तो एकदम से ही मैं बीट बनाने लग गया क्योंकि मेरे को इसको सुनानी है, ऐसा नहीं था। मैं यूट्यूब पे गया, मैंने 1-2 चैनल को फॉलो करा जिसमें प्रॉपर मुझे 15 से 20 मिनट का पूरा दिख रहा है कि वो बीट बना कैसे रहा है। मैं उसको देख रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। अच्छा इसने पहले कॉर्ड्स डाली, अच्छा ओके नाइस, अच्छा ये मेलोडी डाल रहा है, ओके ओके, अच्छा ये प्लगइन यूज़ कर रहा है, ओह इससे मेलोडी पे और टेक्सचर आ गया, ओके अच्छा ये प्रोसेस है। फिर बेस, फिर मैं उसी स्ट्रक्चर को मैंने देखा, उसी प्रोड्यूसर को, मैं और कहीं स्विच नहीं करा, एक ही पे रहा मैं कि इसका क्या स्टाइल है। क्योंकि आप किसी को देख के उसका स्टाइल जल्दी अडैप्ट करते हो तो रहता है मल्टीपल, आपकी चिड़ी बन जाएगी बहुत सारी ना। आपके क्लैरिटी रखो, क्लैरिटी एक लॉयल रहो भाई यहाँ पे भी ना जीवन में। टारगेट वन जॉनर एट अ टाइम। हाँ, तो मैं R&B बहुत सुनने लग गया था, तो मैं R&B अराउंड म्यूजिक सुना, उस प्रोड्यूसर को सुना। फिर उसके बाद लाइक जो 4-5 बार मेरे को उसका वर्क फ्लो समझ आ गया, मैंने बोला चल अब मैं अडैप्ट करके देखता हूँ। तो मैं बीट बनाने से पहले से लेजिट उसकी 2 वीडियोस देखता था। अच्छा। और फिर मैं रेप्लिकेट करता था। इवन मैंने उसकी साउंड सिलेक्शन तक देखी, इसकी साउंड सिलेक्शन किया, चल ये प्लगइन मेरे पास भी है, ये वाली साउंड सिलेक्शन यूज करता हूँ, अगर इससे बन गई तो शायद मेरे से भी बन जाएगी। गुड पॉइंट है, मैं भी करता हूं। या तो ये वाली चीज मैंने यूज करी। और उसके बाद द थिंग इज दैट लाइक कट टू चेस करते अब इसमें कर सकते हो। क्या हुआ कि लाइक वो 3-4 गाने की फिर मैंने ईपी ही बना दी। बेसिकली व्हाटएवर जो 5 बीट्स मैंने बोली इनको बनाने के लिए, इट वाज लाइक ही गॉट टू लाइक बैक इनटू द जोन। बस ये हो रहा था कि वो शुरू नहीं कर पा रहे। आई जस्ट गिव हिम अ सिंपल टास्क कि यार ये 5 बीट बना दो, बस कैसी बना दो, गंदी बनाना, चाहे मेरे को सुना दो, बस 5 बीट्स बना के। एंड ही जो उन्होंने शुरू करा बनाना, तो ही गॉट ऑब्सेस्ड विद इट। ये करना ही सी दैट्स द थिंग, लाइक मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं उसमें बहुत बिल्कुल जल्दी। बिल्कुल लाइक मेरे को किसने बोला एक्चुअली, पहले रिकमेंड करा था कि व्हेनेवर यू फील लाइक कि कुछ बनाने का मन नहीं है, फिर तुम डिमोटिवेटेड हो, तुम बस 15 मिनट के लिए बैठ जाओ कुछ भी बनाने बैठ जाओ। मतलब 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। उस एक मिनट लाइक 5 मिनट के लिए मैंने कुछ 4-5 क्लिक कर दिया, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता उसके बाद। फिर यार ये सच बात है, आई फील दैट एनर्जी। जब भी ऐसा लगेगा ना कि मैं यार नहीं कर पा रहा, बस 5 मिनट बैठ जा, बस कुछ कर दो वहां से। डेफिनेटली कल रात लेट के बना दी भाई। इट्स ऑल अबाउट सेटिंग, यू नो। शूट कर रहे थे, करके दुखी हो गए थे हम। बेसिकली रील बना रहे, नहीं बन रही क्योंकि इनसे एक्टिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं बोला यार स्क्रिप्टिंग नहीं थी, मैं बोला रहने दो, मैं बोला कुछ बना के देखते हैं भाई। लेजिट नींद में बैठे हम ऐसे ही 5 मिनट, जस्ट बिकॉज़ वी हैड दैट अर्ज कि हाँ चलो कुछ बना लेते हैं। और फटाफट बस एक लूप लगाया, उसमें किक्स लगाई, ड्रम्स ऐड करे, एकदम से वो लूप हटा दिया, लास्ट में लूप हटा दिया, कुछ और लगा दिया उसमें। और वो तो दूसरी चीज और इसमें रैप कर लेते हैं। Yeah, I mean some people have said this, that like you are not the creative person. Creativity flows through you. Okay, like you are the vessel. काफी लेयर्स है इस बात पे। Yeah, काफी layers you're है the इस vessel that like तुम universe में तो like whatever creativity is happening through you, so you have to become that vessel immediately and just like act in that zone कि let's say what happens, there are many possibilities that anything can happen, right? So कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी है। मेरे को जो चीज़ मतलब जो मैंने भी काफ़ी फेस करी है, Right. whenever I start making music, मुझे कुछ करना होता है ना दिन में, तो आई ऑलवेज टेक इट अप एज अ टास्क, जो कि ठीक भी है और गलत भी है। क्योंकि अगर मेरे को लगता है यार 4 बीट बनानी है आज, तो वो नहीं बन पाएगी मेरे से। मतलब डेफिनेटली सरदर्दी सी हो जाती है वो, है ना। ये नहीं पता था मेरे को तू ऐसा सरदर्दी ले सकता है। हो जाता है, मेरे को लगता है यार कि प्रो आदमी है। नहीं, प्रो ठीक है, वो कर देगा ये। हर एक प्रो आदमी सरदर्दी से। हाँ, तो मतलब ये exactly, ये भी मतलब लोग I think सोचते हैं you लाइक would also मैं किसी relate क्रिएटर to को this देखता some- हूँ लाइक ये कैसे कर दिया यार, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होती लाइफ में, ये कैसे पहुंच गया उस level नहीं पे? सबको होती है यार। आई ये थिंक चीज भी पता होनी चाहिए। We'll bring one or two like famous artists like in the podcast itself, Yeah, and इस topic के around discuss कि करेंगे। ये मैं भी सोच रहा था और मैं इसको पूछता भी था एक बंदे को कि like you know many people think this way कि like तू famous हो गया है so you might be doing everything great, like you know everything कुछ is गलत ही sorted नहीं for हो रहा you. उससे। No, people are
करते होंगे ना। लाइफ हर एक के अपने मुझे struggles अभी हैं। भी क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ के बारे में, पता है। नहीं तू बता भाई। ये दोस्त है मेरा, मैं इससे रिलेट नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो। अभी मेरी आपसे भी दोस्ती होगी तो मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा। जब तुम्हें कोई एक अलग लेवल, अल्ट्रा लेवल बंदे बोले अरे यार यही है, वो नहीं बोल देगा ना मेरे को, तब तक कन्विंस नहीं हो पाऊंगा। स्क्रिलेक्स आगे बोल रहा है मैं भी ऐसी यार ऐसे ही हो जाता है यार, Oh, shit. टूटन होती है सच है मेरे क्या? को, मेरे को भी टूटन होती है बनाते टाइम में। क्रेजी बट हाँ, तो मैं थोड़ा सा रोल इट बैक। तो क्वेश्चन बेसिकली था कि हाउ यू कैन बी कंसिस्टेंट अराउंड इट, एंड आप क्या माइंडसेट लेके चलो सो दैट यू कैन बी। नहीं, you were saying that like you मैं बता रहा हूँ, हाँ, मैं 5 going बीट्स through. नहीं बना सकता दिन में। मैं उसको मर्ज करूंगा अब इन दोनों चीज़ों को, पॉइंट्स को। तो कंसिस्टेंट कैसे रहो, और हाउ डू यू लुक एट, यू नो, इफ देयर डोंट लुक एट इट एज अ टास्क कि यार मेरे को, लेट्स से मेरे को एक ईपी बनानी है अपने लिए, ठीक है। तो अगर मैं ये सोच के बैठा यार मेरे को ना ईपी बनानी है, आई वोंट बी सैटिस्फाइड विद वट एवर आई मेक, कि मैं बोलूँगा ये ईपी के लिए नहीं है यार, दिस इज नॉट गुड इनफ, ये ऐसा है, ये वैसा, ये फलाना। डोंट एवर गो विद द माइंडसेट कि यार ये गोल है राइट। और मेरे को ये बनाना है। नहीं, मैं पढ़ाते हुए भी हमेशा ये करता हूँ कि लाइक बिकॉज हर दिन ऐसे नहीं हो सकता कि तुम्हें इंस्पिरेशन आ रही हो और यू फील लाइक मेकिंग म्यूजिक, यू नो, काफ़ी दिन ऐसा लगता है बस चिल करना है थोड़ा, है ना। सो ऑन दोज डेज आई जस्ट सिट डाउन, आई मैनेज माई कंप्यूटर, आई मैनेज दी सैम्पल सेलेक्शंस, जितने भी साउंड्स में यूज़ कर चुका हूँ उससे मैं साउंड्स निकालते रहता हूँ। कई बार साउंड सुनते इतना क्यूरियस आता है कि बीट बना देता हूँ। डेफिनेटली लाइक सैंपल सेक्शन से आपका मतलब वन शॉट्स है? नहीं, कैसे भी नहीं, कैसे भी कुछ भी तूने साउंड डिजाइन करा एक ट्रैक में, इन एबलेटन लाइव वी हैव दिस थिंग दैट इफ यू ड्रैग द मिडी ऑन द लेफ्ट साइड इन द फोल्डर, यू कैन सेव ऑल दोज automation, everything that you've done in that patch, like drag it from the arrangement view, and whatever your automations you have, whatever MIDI वो भी सब save हो जाता है। sequence you have, you drag it there and it gets saved. So this is a one cool way of saving the sound that you made in different projects, so that maybe you want to use it again in some parts of this. So ये सब admin work अगर तुम थोड़ा बहुत कर दो ना, so sometimes it inspires you to make music or just do your admin work. बहुत सारा admin work important है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बैंक का काम कर सकते हो जाके, तो करो भाई, उसके बाद वापस आके यू विल ऑलवेज फील लाइक मेकिंग म्यूजिक। दिस इज अ पैरेलल दैट आई वुड लाइक टू ड्रॉ बिटवीन, कि जो हमारी जो क्रिएटिव आर्ट्स वाली इंडस्ट्री है ना, एट टाइम्स इट्स लाइक, मतलब दिस इज समथिंग ऑल्सो आई हैव फेल्ट इन द पास्ट, कि अगर आई एम नॉट एबल टू क्रिएट कंसिस्टेंटली, तो मुझे लगता है यार ये तो फिर दिस माइट हिंडर माई सक्सेस, मैं कैसे लंबे टाइम तक कैसे काम करूँगा, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। बट एट दी सेम टाइम इट्स नॉट सपोज टू बी लाइक दैट, आई थिंक, है ना, बिकॉज ये कोई डेस्क जॉब या वो नहीं है ना। इवन एट डेस्क जॉब यू आर नॉट ऑलवेज एवरी डे एट योर ऑप्टिमल क्रिएटिविटी, आप हर दिन 100% लेवल पे तो काम करने फाइन बैलेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट एज वेल, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको ऑफिस में काम करने करके देना, यू हैव टू यू नो डिलीवर सम टास्क, तो आप वो जबरदस्ती भी कर रहे हो, तो क्रिएटिव टास्क नहीं ना, बट एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। तो विद द क्रिएटिव टास्क यू नीड अ फाइन बैलेंस, कि कभी कभार यू विल बी इन द वेरी गुड जोन, आप बना रहे हो, कुछ चीज़ें बन रही है, बट एट टाइम्स यू नीड टू सिट एंड फोर्स योरसेल्फ, बट देयर इज अ वे टू फोर्स योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू लुक एट इट लाइक अ डेस्क जॉब, कि हाँ यार ये मैं ये मैं मेरे को 8 घंटे काम करने ही करना है, आज मेरे को आज ही ईपी के लिए गाना बनाना ही बनाना है, माइट वर्क फॉर सम पीपल। क्या कर सकते हैं हम? मैं वही कह रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को जो चीज़ समझ में है ना, कि टाइम ब्लॉक कर लो, rather than giving yourself a task, just give yourself 2 hours. अब इन 2 घंटों में I'll do production, ठीक है। अब मैं कुछ भी बनाऊंगा, doesn't mean it has to be for the client, doesn't mean it has to be for the EP I'm trying to make, doesn't mean it has to be, कुछ भी नहीं है वो, I'm just like trying to make something. And जो इनिशियल 10-15 मिनट का आप अगर आइस ब्रेक कर दोगे ना, व्हेन यू आर इनटू दैट 2 hours अपना सेक्शन पूरा, तो आपको अपने आप चीज़ें समझ में आएगी, जो मैं बना रहा हूँ, इज इट फॉर द ईपी, इज इट फॉर द क्लाइंट, कुछ ना कुछ बढ़िया बन रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन कैसे मिलेगी। स्टार्ट विद द, रादर देन स्टार्टिंग विद द गोल, हाँ, स्टार्ट मेकिंग एंड देन फॉर्मुलेट द गोल, कि हाँ यार ये यहाँ पे हो सकता है। काफी इसी के कंटेक्स्ट में वो था कि लाइक मैं भी ये करता हूँ। अभी मेरे पास वीरे के लिए भी एक क्वेश्चन था इसके अराउंड, बट मैं लाइक देयर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर्स, लाइक इन हिप हॉप यू जनरली स्टार्ट विद द सैंपल, बीट्स भी होने जरूरी हैं, बट इन मेनी जॉनर्स लाइक यू जस्ट कैन मेक द ग्रूव फर्स्ट। Yeah, definitely. Like for example progressive house, even in disco, probably like synthwave, sometimes you just want to make the drums. अगर तुम्हारे ड्रम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक अगर सिर्फ ड्रम्स प्ले करके ऐसा लग रहा है कि ट्रैक फाड़ होने वाला है, तो योर ट्रैक इज गोना बी ग्रेट। सो समटाइम्स आई फोकस ऑन जस्ट मेकिंग सेटिंग डाउन एंड मेकिंग ग्रूव, क्योंकि वही तो ड्राइविंग एलिमेंट है। ऐसे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, मतलब जो ग्रूव पे फोकस करते हैं, भी वही वर्क क्योंकि he also starts with 1-2 घंटे सिर्फ ड्रम्स को लगा रहे हो, उसको मिक्स भी कर रहे हो, एंड मे बी यू फील लाइक कि हाँ बस मैं चिल करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट डे व्हेन यू कम बैक
you will be in a next वापस level hit की कर भाई लेते हो आप। ऐसे हो कि भाई ये भी क्या अच्छी बन technique रहा है है यार, इस true, पे ये true. ये करता है हूँ भाई, ये काफी sit down on the कल chord ये तो कर रहा progression था। exactly sit down on the chord progression just because you have a you know Yeah. already have a rhythm to go along कि हाँ यार ये तो बढ़िया लग रहा है and इसके दो एडवांटेज है। आपको पॉकेट्स बहुत अच्छी मिल जाती है, हाँ कहाँ आप कॉर्ड्स आनी चाहिए कहाँ नहीं, यू नो वो वाला वाइब yeah I mean एक टेक्निक बनानी पड़ती है एज अ प्रोड्यूसर दैट यू लिसन यू मेक स्टफ एंड देन यू लिसन टू इट अगेन एंड फिगर आउट अब क्या हो सकता है अब क्या हो सकता है बट व्हेन यू हैव लाइक लेट्स से अ मेन एलिमेंट ऑफ योर ट्रैक डन then you can take it anywhere right like the next सैंपल day हटा दो कुछ कर दो। the next day you'd be like अगर अरे भाई एक ड्राइविंग एलिमेंट रेडी हो गया उसका कि हाँ ये बीट है and I just have to build around it. concluding your point basically हर दिन सेम फीलिंग में नहीं रह सकते हम लोग एक दिन ड्रम्स की फीलिंग है अगले दिन क्या पता हो और ये अच्छा सोच बहुत रहे हो अच्छी बात है, ये भी बात Right? बड़ी है, दो बात अच्छी निकली। so this is like these are many different tactics जो हम अपने माइंड के साथ खेल रहे हैं और it's all about like this chemicals बहुत we are crazy चीज़ है we are भाई, dealing music with production। है ना I mean in the sense of कि हम हमारे जो मूड है हमारा जो वो काम से बहुत रिफ्लेक्ट करता है right like how For we sure, can for control our emotions For to be in sure. a state and in music that happens a lot so that's one thing that people can do I बट mean, आपको एक क्वेश्चन पूछना था मेरे हाँ से तेरे से क्वेश्चन ये पूछना था कि like when you are making all this album like what all अबाउट सोमा। yeah so EP for example album, EP. usually what happens as one of the main problems with me as a producer as well that if I'm working on one track and I have not completed more than 60% of it and I move to another one that track might die आपको ना बस जाना नहीं है वहाँ पे 60% पे भी। आपका क्वेश्चन हाँ। हो गया कंप्लीट? हाँ यही है या तो मतलब आपको ये है कि अगर वो 60% में छोड़ के आप दूसरा ट्रैक बनाओगे तो वो ट्रैक के रिस्क है वो कंप्लीट होने में। Exactly. right? तो थिंग इज आपको जाना ही नहीं, देयर इज अ डिसिप्लिन वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब तक आपका एक ट्रैक मिक्स और मास्टर स्टेज से नहीं निकल जाता वो ट्रैक कंप्लीट ही नहीं है, वो डेड है, कुछ नहीं कर well सकते आप उस ट्रैक but पर। ये ठीक तो है बात बट ये कभी बार पॉसिबल नहीं हो पाती कि कैसे क्या आप मास्टरिंग स्टेज तक नहीं आप पहुंचाना चाह रहे? आई फील कि 80% 85% भी रेडी है ना ट्रैक हाँ तो आई प्रॉब्ली वुड वांट टू टेक अ रेस्ट फ्रॉम इट एंड मूव टू अनदर थिंग एंड देन कम बैक टू इट एंड डू अनदर 15 मैं इस वाले डिसिप्लिन में जाता ही नहीं हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि अगर इस ट्रैक की एनर्जी मुझे समझ आ गया, अगर आपको एनर्जी पे कॉन्फिडेंट हो ना तो आई थिंक आपको उसको मिक्सिंग स्टेज पे लेके जाके उसको मास्टर करके फिर ब्लॉक करना चाहिए। मिक्सिंग तो हो जाती है समझ गया। इट्स मिक्सिंग इज डन बट मास्टरिंग इज नॉट डन आपको फिर But बचे हुए मास्टर तो कुछ 15% बचा ही में नहीं करना है। क्या आपको? कुछ भी नहीं है। What's the remaining 15%? being so choosy as a producer नहीं। there are always few effects हाँ, few automations हाँ, few breaks suddenly हाँ, हाँ। few minute tweaks Oh, always समझ रहा at the हूँ। very ठीक, end ठीक, ठीक, right ठीक, ठीक। so you know that tadka at the very end like the hara dhania at the तो very आप अपने part. ट्रैक सुनाते किसको जब आप बनाते हो? गुड क्वेश्चन मैं बहुत कम लोगों को सुनाता हूँ अपने ट्रैक्स तो आई गेस वही आपको एक फाइनल किक दे सकते हैं, होम यू लाइक जिनके ईयर्स को आप ट्रस्ट करते हो, आप उन ट्रैक को उन पे भेजो। इफ दे से भाई मज़ा आ गया ये सही है ना, तो आपको ना एक कॉन्फिडेंस आ गया, चल यार इसको मज़ा आ रहा है तो That's इसके true. काम को मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो चल यार इसको मास्टर पे डाल के आगे मूव ऑन करता हूँ। देख प्रॉब्लम तो वही तो है कि मैं कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट बंदा हूँ कि मेरे को पता है कि मेरे को पता है ट्रैक कि तो मेरा बढ़िया ही है, तुम क्या बताओ? नहीं ट्रैक एक्चुअली में अच्छे होते हैं, मैंने सुने एक दो उसकी बात नहीं कर प्रोडक्शन। रहा मतलब मैं ये कह रहा था कि समटाइम्स आई फील कि अगर मैं किसी और को ट्रैक सुना दूंगा ना हाँ। वो बात नहीं थी मतलब मैं समझ best गया हूँ। बट मैं एक हैक बता रहा हूँ, दो। मे बी शायद आप नहीं निकल जाओ। द थिंग इज complete दैट कर दो। एज आई वाज एज यू आर आस्किंग मी नो कि कितने लोग आप ट्रैक सुनाते हो, मैं बहुत कम लोगों को सुनाता हूँ बिकॉज मैंने रिसेंटली चीज़ अडेप्ट ही हो गई है ऑलमोस्ट कि अगर मैं किसी को सुना दूंगा म्यूजिक और उसने हल्का सा भी अलग रिएक्ट कर दिया सो आई वुड थिंक दैट पर्टिकुलर पार्ट और दिस पर्टिकुलर पार्ट आई नीड टू डू समथिंग ऑन इट। तो आपको वो भी नहीं करना ना, ये भी ट्रिक है इसकी। क्या trick है? आपको करना वही है जो आपको करना है, आपको बस उससे आइडिएशन लेनी है थोड़ी, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होना है कि मेरे को सुनाना है। It's a जो risky thing. क्रिटिसिज्म आएगा, It's a risky thing Yeah. because like many people are not in the same genre style, and like for example, you're mostly relating this with hip hop, so and I can understand from that or like R&B in that context of like I made this beat, I made this groove, but when it comes to a whole what type of genre like main बताओ। कोई main नहीं बोला मैं मतलब for example if you're making even jazz music, even ठीक, like ठीक, ठीक। anything acoustic in nature, ठीक and you express your feeling to someone, ठीक है। and they say that अच्छा था so the whole confidence of sitting at nights for 24 hours and just like going through that beat just like
somewhere goes down. मेरा ना एक क्रेजी दोस्त है, उसका हाँ. नाम मैं दोबारा मेंशन करूंगा, मयूर. हाँ. वो आदमी ना पता है क्या है, वो कहता है कि इस ट्रैक को अपलोड करने के बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा. उसका यही जोन है. अपलोड करने के बाद मतलब Next पे जाऊंगा. अपलोड स्पॉटिफाई पे अपलोड करने के बाद मैं नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाऊंगा. समझ रहे हो? that's a ये nice अलग ही कॉन्फिडेंस है. कई बार लाइक भाई ये क्या कर रहा है, बट कहता है ब्रो मैं ऐसे आगे पता कैसे है बढ़ूं, वो- मुझे क्वांटिटी बनानी है ज्यादा से ज्यादा. पता है वो फिर कौन मेरी बंदा है quality- जो आपको याद है वो इस पॉडकास्ट में कह रहा था कि मैंने ना रात में म्यूजिक डाल दिया, मुझे कोई कह रहा था गाना निकालना, मैंने डाल दिया अभी. वो मयूर कह रहा है तो मेरे को लगा मेरी बात हो रही थी. वो पता है 4-5 गानों की ईपी ऐसी निकाल देता निकाल रैंडमली देता है. कि ये देखो मैं ईपी डाली यार, See, बढ़िया I- देखो, कैसी देख, as long as music निकल रहा है और रोटेटिव काम हो रहा है, अच्छे कर रहे हो भाई. There are- there are मोटिव का भी basically सीन नहीं है ना उसका. two उसका कुछ ways नहीं. to look at it. वही है, It's देखो just आप that- कंसिस्टेंसी अचीव कर लोगे, यू हैव टू बी इन अ गुड जोन, क्रिएट, आप म्यूजिक बना रहे हो हाँ. बट फिर वो ब्रांडिंग वाली दूसरी चीज शुरू हो जाती है कि अगर आपको सक्सेसफुली एक आर्टिस्ट यार, बनना है देन वो सब चीजें बाद में आती हैं. हाँ वो दूसरी एट बात द एंड लाइक आई फील कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा म्यूजिक कैसा है एंड अपना म्यूजिक कितना बना हुआ है, राइट. एज लाइक फॉर हिम इट वाज अ टास्क, लाइक एज यू टोल्ड हिम कि भाई 5 ट्रैक्स बनाने, सो दैट गोल शुड बी इन द माइंड. देयर शुड बी शॉर्ट गोल. ओके देयर शुड बी शॉर्ट गोल कि जाना 2-3 भाई. ट्रैक तो मेरे पास होने चाहिए जिससे आई फील कॉन्फिडेंट एंड आई सी व्हिच वन आई वांट टू रिलीज फर्स्ट. दैट्स इट. अब देयर आर मेनी हर्डल्स अराउंड दिस थिंग. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी हर्डल्स इन द सेंस कि anyone might give up at any stage. We're not talking about that. We're talking about how to do it, right? सही Let's बात just say that because there are many hurdles in this कि मैं इस टाइम पे गिव अप कर दिया, मैंने इस टाइम पे गिव अप कर दिया. 3-4 महीने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने गाने से बोर हो गया हूँ. All these things are there, होती right? है, ये होती है, There are many definitely topics we होती है. can discuss, but ultimately the idea for people like us who are like motivated and want to do shit, I feel कि 2-3 ट्रैक 3-4 ट्रैक बनाते रहो और रिलीज करते रहो in monthly proper planning. Yeah, you know, yeah. if you don't know how to deal with this, Augment बैठा है यहाँ पे बताएगा. But हाँ, क्रिएटिव डायरेक्टर. yes, but like ये फैक्ट है भाई. but that's what I'm saying, like कि 3-4 seriously tracks बनाओ, जैसे इसने सोमा रिलीज करी, प्लानिंग करी उसकी, enjoy the process and that's how you Soma should it do just things, yeah. happened. Like the thing is like मैंने Yeah. 4 ट्रैक थोड़ी सिमिलर वाइब के लिए बना दिए. Then I was like यार मेरे को अब वाइब स्विच करनी है. मेरे को ये बहुत ज्यादा ही मैं like 90 BPM You go through 100 many BPM process, पे. yeah, as an artist as बट well. मैंने सोचा कि अब ये तो बन गया है. फिर मैंने बोला यार अब मेरे को ना इसको डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी, और डॉक्यूमेंटेशन ऐसी नहीं, वो ईपी मेरी 7 महीने पुरानी है, और जब मैं ये बोल रहा था ना कि वो डॉक्यूमेंट करनी है, तब मैं अलग स्टेट पे था और मैं उससे बेटर प्रोडक्शन कर रहा था. अच्छा, बट मेरे को लगा ना कि बट वो वाला वीरे भी तो था, एग्जिस्ट कर रहा था. exactly. उसका भी तो टाइम था ना जब This उसने is करी another वो main चीज़. thing. अगर तुम लेट हो गए ना म्यूजिक डालने में, हाँ. तो you might not release it. I'm sorry, it नहीं, happens. ये है, दिस इज अ ये- फैक्ट. ये सबके साथ होता आगे है. बढ़ बहुत जाते हो होता है, आप आगे ना, बढ़ जाते हो, नई चीज़ें सीख लेते हो. डिफिकल्ट टू गेट इट, लाइक गेट टू द पॉइंट कि ये मैं निकाल दूं कि नहीं निकालूं. वो बिकॉज बहुत यहाँ दिक्कत पे हो ना जाती है. आपको थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव आ जाना चाहिए. यहाँ पे आपको ना ये समझना चाहिए आप इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन हो, आपके ऊपर कोई लेवल नहीं है भाई, आप ही को करना है सब कुछ. तो आप वो क्रिएटिव Well, यो वाले जोन में जैसे मत रहो इंडस्ट्री अपडेट हो रही है, Yeah. हर दिन AI Oh कुछ ना कुछ हो भाई, रहा है, crazy. वैसे ही तुम्हारी आर्टिस्ट्री भी अपडेट हो रही है रोज. Definitely. सो मैं अगर तुमने 4 महीने पहले को ट्रैक बनाया, अब तुम और बेटर बना दोगे बना डेफिनेटली. दोगे, सो हाँ, हाँ. यू शुड प्लान टू पुट इट आउट एज सून एज पॉसिबल, जिससे पहले तुम उसको इट्स यू हैव टू लेट इट गो, यू हैव टू लेट समथिंग. एग्जैक्टली. आप ये भी तो सोचो ना कि आपके लोगों ने नहीं, आपके स्टेज नेम से रिलेटेड कुछ कंटेंट अभी तक सुना भी नहीं है. आप वही. तो अपने आप ही इंप्रूव करे जा रहे हो, बट Yeah. वो भी तो डॉक्यूमेंट करो ना. जब आप जब स्टेज नेम बनाते हो 2016 में, चलो बना लिया आपने, है ना, आपने वहाँ पे गाने बना लिए. अब आप 2017 में पहुंच गए हो, तो वो 16 में जब स्टेज ने बना तो वो गाने नहीं पुट होने चाहिए. रिकॉर्डिंग But इंडस्ट्री वो- केटर्स है टू ना, द उसके बाद लाइफ. हटा दो. अगर आप लगता है से कि उसमें एक वो है, मतलब देयर शुड बी अ प्रॉपर फ्लो अराउंड इट. अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे, मतलब जी आई सम अप द एंटायर थिंग. एक पॉइंट और है मेरे हाँ, को. बोलो. आई वाज लाइक कि आप ये सोचो कि हम सोचते कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम वो छोड़ के अब इस वाले पे फोकस करते हैं. फिर पता चलता है वो भी टल गई और फिर वो क्वालिटी अच्छी नहीं लगती. फिर ही आप ये सोचो कि अभी आप अफोर्ड कर सकते हो वो क्वालिटी निकालना भी. कल को आपने फोड़ दिया, अब आपको मिल्स में लोग देख रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं फुल पावर, तब यू कैन अफोर्ड टू डिलीट दैट कैटलॉग एज वेल. ट्रू. यू नो, ये हाँ, भी वो ट्रिप भी है, है. मतलब समझ But- रहे हो. So many many artists will do that. काफी एंगल, जिसमें अभी ऐसा काफी भी angles होता है हैं. कि बंदे जो साउंड क्लाउड पे मतलब वो बनाते हैं इनिशियल मिक्स टेप्स और ये वो बाद में रिलीज हो जाती है. मतलब इफ़ यू आर नॉट मे बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वीकेंड ने
अपनी ट्रिलॉजी पहली 3 एल्बम्स वर नॉट एन ऑफिशियल रिलीज, उसने साउंडक्लाउड पे रिलीज करी थी, ठीक है, या एग्जैक्टली उसने रिलीज कर दी थी एंड ही गॉट फेमस इन हिज सिटी जस्ट बिकॉज ऑफ दोस एल्बम्स. अब ऐसा नहीं, अब हो सकता है कि बाद में वीकेंड बोल रहा हो कि यार ये तो मेरी तो बेटर क्वालिटी, बिकॉज अब उसने वो निकाल दी थी क्या बोलते हैं हिल्स और आई कैन फील माई फेस, वो अच्छे गाने आ चुके थे उसके, तो अब बोले यार ये तो मेरी बेटर क्वालिटी हो चुकी, मैं निकालूँ ना निकालूँ, बट इट्स ऑलवेज या मैंने they just like तभी both ways to look at it. ये एक्चुअली जो ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए सॉरी मैंने कट करा, बट ये वाला पॉइंट मैंने एग्जैक्टली उन लोगों को बोला है जो नहीं निकाल पा रहे यार, उनको बोला है मैंने ये. अगर तुम इतना उस जोन में हो तो भाई फिर प्रूफ भी कर दो, और फिर उसके बाद ये भी कर दो कि हटा दिया भाई इतनी लेवल नहीं थी, ये सुनो ये तो निकाल रहा हूँ मैं यार. अब तुम्हारे पास सब है कि अगर किसी ट्रिप रखो, किसी के पास भी कुछ दिखाने के लिए नहीं होगा, सो लाइक इफ आई कम एंड टेल यू व्हाट इज योर साउंड एंड इफ यू डोंट हैव लाइक एग्जैक्टली, because as I was saying ki you have to let it go. It's releasing music is almost like a sacrifice. ये बहुत अच्छा perspective है. And if you have not sacrificed anything as an artist, then I won't take you seriously. No, true, definitely. That is it. Like you just show what you sacrifice yourself. Ki I said ki I express myself with this music. Whatever skill I have, it's a big thing, man. It's as a big an artist, thing. It's a big thing. It's a big thing. To be out there to show all yourself in Spotify. This is what I am, and I'm saying this is what I am. I'm not like hiding from it. So that's the thing. So you have to put out what you are at this moment, and later you will of course improve. Like there's no insecurity. And I guess मैं इसमें भी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ. क्या पता मेरी उन 4 रिलीजेस की वजह से आज मैं यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपने मुझे इनवाइट करा, तो exactly this could be one of the thing. Actually मैंने वीरे को समझ रहे हो, मैंने वीरे को इसलिए इनवाइट करा, तेरे को इसलिए इनवाइट करा मैंने, तेरे रिलीज होने से पहले ही तेरी जो प्रेजेंस है ना on the Instagram, it's already really nice. And I think you can do really well with the kind of things you do. You just need to just make like dive into it totally. Yeah. But you have a nice camera presence. And like he was pretty creative, because I was telling you like the video that he made in grocery store, रात को गया हुआ थोड़े बहुत बनाया. So creative. उस टाइम पे हम लोग कंटेंट बना भी नहीं रहते. उस टाइम हम कंटेंट बना भी नहीं रहते. So I really like that factor. Like he's going and he's like taking an initiative to make things correct. अगर हमारा थोड़ा visual aesthetic सही हो, हमारा जो ऑडियो एस्थेटिक है, फॉन्ट्स का एस्थेटिक है, वो 3 चीजें एक कोई भी फुटेज को अच्छा कर सकती है. सो दैट्स व्हाट ही डिड. सो आई वाज लाइक डेफिनेटली. प्लस ही सीम्ड रियली फनी एंड लाइक एंगेजिंग, एंड द म्यूजिक एंड एवरीथिंग एज वेल. लाइक तेरा पिछले ट्रैक्स भी काफी अच्छा, जिस पे बंदे ने साथ में रैप कर रखा है, हाइज एंड लोज. हाइज एंड लोज की भी एक चीज बता देता हूँ. वो ट्रैक मेरे को अब इतना सही नहीं लग रहा, उसमें वोकल्स बहुत पीछे है, बट वो डल चुका है भाई. जो मैं सुन रहा हूँ ना, मैं वो नहीं सुन रहा हूँ. तो आप समझ रहे हो, मतलब बात वही मैं कहना चाह रहा हूँ. मैं उसी पॉइंट पे वापस डायरेक्ट कर रहा हूँ कि अब मेरा मन कर रहा है कि यार उसको हटाऊं क्या करूं. अब लाइक क्यों भाई, अब वो डल चुकी है, वो चीज़ बहुत खूबसूरत है, चलो कोई नहीं, मैं नई अच्छी जगह इंप्रूव कर दूंगा. यही तो प्रॉब्लम है आर्टिस्ट के साथ, अपने जोन में बैठा हुआ, अपने ही जोन में मैं डाल दूंगा आगे भाई, कुछ नया डाल सड़ रहा है. या आई गेस दिस pretty much about this topic. ना खुशी खरीद पा रहा है, ना दुख भेज पा रहा है, ना खुशी में सड़ रहा है, ना खुशी खरीद पाता हूँ, ना गम बेच पाता हूँ. ये हमारा इनसाइड जो गया, हमने एक रील देखी थी बहुत बढ़िया. बट आर्टिस्ट इज गोइंग थ्रू दैट. लाइक जैसे वीरे सोच रहा है कि उसका ट्रैक उसको रिमूव कर देना चाहिए, और मैं इसको खुद अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, मेरा ट्रैक मैंने सुना हो. सो यू कैन इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग विद आर्टिस्ट, एंड लाइक यू नीड टू मूव आउट ऑफ हिज जोन, and it's a sacrifice, so it's up to you. ये बहुत अच्छी बात है. 2-3 पॉइंट बस इसको कंक्लूड. And what's the next one we can I think वो पॉइंट शुरू हो चुका है. Just have to direct the question that way. So conclude the topic. हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि हाँ डेफिनेटली यार कि एक म्यूजिशियन बंदा बहुत he's also not self-obsessed. He is also very obsessed with his art, very picky around his art कि यार ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. But I think ये पूरा जो process है ना, it just gets simpler if you have some peers around you. वो रखो 100%. Just be in a good company, है ना, कि आपसे रिलीज हो रहा नहीं हो रहा. हमारी सारी बात में कहीं ना कहीं peers involvement थी कि अगर आप गाना बना रहे हो, यू वांट अ रिव्यू, सुना दो किसी को, ठीक है. गाना नहीं बन रहा, किससे पूछ लो. बट यू नीड टू हैव दोज peers around you. And also have a good sense of time management around your creativity वाला aspect कि अगर आप म्यूजिक बना रहे हो, ठीक है, तो उसको टाइम लॉक करके बनाओ कि हाँ चल मैं हर दिन की 2 बीट्स बनाऊंगा, अपने दोस्तों को सुनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा. एंड बी इन अ कंस्ट्रक्टिव जोन कि उसमें से आप चीज़ें निकाल सको कि हाँ ठीक है, ये मेरे से ये अच्छी बीट बन गई, आपके 2 दोस्तों ने बोला ये बढ़िया लग रही है. अब ये ना हो ना कि बस बढ़िया लग रही है, ठीक है क्या करना है इसका. बी इन अ जोन कि हाँ अब उसको मैं कंप्लीट करके पुश आउट कर सकूँ Spotify में. एंड दैट ओनली हैपेंस व्हेन पीपल अराउंड यू आर रिलीजिंग म्यूजिक, पीपल अराउंड यू आर डूइंग सम थिंग्स. कोई डीजेइंग कर रहा है, कोई
स्टूडियो चला रहा है, कोई गाने बना रहा है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सो थिंग्स आर हैपनिंग. सो ये रहता है कि एक क्रिएटिव जोन रहता है अपना. Yeah, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड बी involved in. अगर अपने आप स्टूडियो में बैठे सड़ रहे हो तुम कि वही ये सही क्योंकि नहीं, आप कह रहे थे ना you have to म्यूजिक move से out. एक सड़ रहा है बंदा, which happens sometimes, क्योंकि मैं भी जब ज्यादा कह रहा हूँ मैं सड़ रहा होता है क्या बोर हो गया, नहीं बनाने का मन कर रहा है वो, तूने but बहुत ही फाड़ चीज बना दी हो बट किसी को सुनाई नहीं. किसी को सुनाई नहीं, क्या सड़ रहा हूँ मैं अपने साथ ही सड़ रहा हूँ आर्ट के मीम्स साथ. बनते हैं इस So, चीज़ yeah, पे, guys. तो इतनी रील्स बनती है. एग्जैक्टली. तो कि वो release ही बहुत नहीं हो. जरूरी है कि Bangers. यू Release करो Computer में भाई. पड़े. रिलीज करो, मेक पीपल लिसन टू योर स्टफ. अगर ज्यादा ही डर लग रहा है तो सेफ सेक्शन में रिलीज कर दो, साउंड क्लाउड मिक्स क्लाउड पे रिलीज कर दो. अगर ज्यादा डर लग Anyhow, रहा नहीं, हाँ, तो साउंड क्लाउड पे रिलीज कर सकते हैं बट सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस वाला पॉइंट बहुत बढ़िया था. है, ये बढ़िया बात पुट आउट योर आर्ट. बनानी पड़ेगी यार, अपना ट्रैक हमने बना रखे है, हमें भी करना पड़ेगा, हमें भी करना है भाई. जरूरत है हमें सैक्रिफाइस. नहीं, मैंने अभी परसों ही एक ट्रैक मेरे को जो जबकि मेरे को लग रहा है वो सही ट्रैक है, तब भी मेरे को डाउट हो रहा था इस चीज़ पे कि चलो आज शुड आई सुनेंगे. सेंड इट टू द लेबल और नॉट. बट परसों तरसों मैंने डाल दिया वो, ठीक है, मैंने कि भाड़ में जाए, लेट्स डाल सी. दिया as in like? डाल दिया as in like I submitted it लाइन इट अप for the no, I submitted it to the label. अच्छा. Send it through labelradar.com. हाँ. And basically Distro? labelradar.com is one of the websites where if you are releasing something, let's say in Just like DistroKid or I think it could be also for R&B or funk or like many I think pitching tool genres like for labels you could pitch your songs and वहाँ पर submit कर दो अपने track based. और okay. काफ़ी सारी अलग genres के हिसाब से labels हैं. Anjuna Deep is also there. Many big labels are also there. Of course they take time but उसमें credit based system है कि अगर किसी ने अगर तुमने credits खरीद भी रखे हैं तो अगर किसी ने रिप्लाई भी नहीं करा तुम्हारा और दे डिडंट गेट बैक टू यू, विल गेट द क्रेडिट्स बैक. सो द सिस्टम इज प्रीटी सॉर्टेड बट इट्स अ कूल प्लेटफॉर्म टू अप्लाई फॉर इट. सो मैंने डाल दिया अपना गाना एंड आई वाज लाइक कि लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस बिकॉज नाउ दैट आई हैव सेंट इट, मेरे को लग रहा है कि अच्छा गाना है. You get it? Like the perspective, how our mind works. So this is how Crazy. Let's cover another one. Like so basically अभी हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो you invited वीरे because like अच्छी कैमरा प्रेजेंस एंड ये वो. So I think मैं पूछता रहता हूँ, this is something I like keep asking him and I keep learning from him. So I think this is something you could also share कि अगर आपके पास कुछ tips हैं या क्या कि how can you be more open to networking with people, और कि आप अपनी प्रेजेंस कैसे, मतलब एक बंदा है जो शाये बैठा है, मतलब ही इज़ लेस प्रोन टू गेट अपॉर्चुनिटीज़ इन द इंडस्ट्री बिकॉज वो बात ही नहीं कर रहा किससे बाहर निकल के, या कुछ जोन ही नहीं है उसका. तो हाउ डू यू build that zone of like being more open, being like connecting with people. कहीं आप इवेंट पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, It's like has like many layers to it. ये जो आप तुम्हारा क्वेश्चन है थोड़ा like कैसे रिप्रेजेंट थोड़ा करें, सा या फिर अगर आप इवेंट पे जा रहे हो तो नहीं, हर किसी के ना what could be the importance of it? what could be the importance है definitely. मतलब what have you felt as like being a like open person who is like very outgoing, not outgoing but like very open to network with people. तो क्या आपने advantages उसके एडवांटेजेस ओके, मतलब आपने क्या ऐसा ऑब्जर्व करा है कि हाँ this has helped me in a lot of ways just because I am willing to बिकॉज talk ऑफ to a lot of लाइक people. या लाइक सो आई कैन लाइक मैं इसको ना स्टोरी में एक्सप्लेन कर सकता हूँ बिकॉज मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब नेटवर्क कर रहा हूँ. सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, मैं अब किसी इंटेंशन से नहीं करता, मैं भी शायद इसी वजह से That's your personality basically. मेरे लिए चीज़ें वर्कआउट करती है. बट अगर मुझे लगता है अगर कुछ एट्रीब्यूट्स को अगर प्रैक्टिस करा जाए तो वंस कैन गेट द अपॉर्चुनिटी विचार समवन पीपल नीड इट, राइट. तो जैसे कि अब मेरे को डीजिंग स्टार्ट करनी थी, मुझे पता भी नहीं था मुझे डीजिंग स्टार्ट करनी है, मुझे पता भी नहीं था मुझे डीजे बनना है, मुझे पता भी नहीं था मुझे म्यूजिक पे आना है. इट्स जस्ट हैपेंड विद द कॉन्वर्सेशन. सो आई वाज लाइक मैनेजिंग अ बैंड, इसमें 4-5 मेरे बैंड मेंबर्स थे, उस बैंड का नाम काफिर बैंड था. तो आई वाज मैनेजिंग दैट, और उस प्रॉपर्टी में मतलब जिस प्रॉपर्टी में हम गिग्स कर रहे थे उस प्रॉपर्टी में ओनर ने बोला ब्रो लाइक आई एम लुकिंग फॉर अ डीजे, कैन यू लाइक मीट मी वन. तो मैंने बोला हाँ ब्रो मैं दे दूंगा ना. मैं घर चला गया और वो 15 मिनट वाले जोन में जब मैं बैठा, जो आप बता रहे हो मैं बैठा, अब लाइक यार मैं अपॉर्चुनिटी किसी को दे क्यों रहा हूँ, मुझे भी थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें पता है, मेरे अंदर म्यूजिकलिटी है, तो वाई डोंट लाइक आई इंस्टॉल वर्चुअल डीजे और मैं वो गिग उठा लूँ. क्योंकि वो प्रॉपर्टी थोड़ी रेस्टोरेंट बार टाइप की थी, तो उसमें इतनी डिमांड नहीं थी कि नचाना है लोगों को, प्रॉपर डीजिंग नहीं चाहिए, और ओनर को भी इतना आइडिया नहीं था कि क्या ट्रिप है ये वो. बट आई वाज लाइक यार लेट्स टेक दिस अप. और मैंने यूट्यूब पे उसी टाइम पे मैंने 2-3 देखा कि मुझे क्या क्या टेक चाहिए
अपने लैपटॉप से चलाने के लिए मिक्सर से कनेक्ट करके। तो मैंने 20 रुपए की USB ली, उसको पूरा राउट वाउट करके मैंने लगाया एंड मैंने बोला सर मैं बनूंगा डीजे मेरे को पैसे दो मेरे को जॉब पे रखो। और मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला कि लाइक आई कैन ऑप्ट इट, लाइक आई हैव अ लाइक गुड सेंस ऑफ म्यूजिक एंड ऑल। तो उसने मुझे जॉब पे रख लिया बिकॉज वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसकी भी नई प्रॉपर्टी, लाइक चल भाई आजा देख लेते हैं। डीजेइंग उसने रखा ही नहीं सेक्शन, और मेरी थोड़ी लुक वुक सही थी उस टाइम पे, और यू नो पीपल लाइक कि हाँ ये खड़ा रहेगा उस कंसोल पे तो अच्छा दिखेगा। उसने ऑप्ट कर लिया मेरे को, वहाँ से मेरी डीजिंग स्टार्ट हो गई। अब जब मेरी डीजिंग स्टार्ट हो गई फिर उसके बाद थोड़ा पैसा आया, स्टार्टेड टू बाय इक्विपमेंट्स एंड ऑल, यू नो। तो ये एक डायरेक्शन मिली मेरे को, जस्ट इज दैट की अपॉर्चुनिटी मैंने, मतलब मुझे पता नहीं था कि वो चीज़ यू नो मुझे आती है कि नहीं, बट मैंने हाँ बोल दिया। बट मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि I can do it. Like sometimes things happen that way in life कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाती है rather than you want to opt for it, right? हाँ ना, तो ऐसा सीन था। अब उसकी वजह से क्या हुआ, अब नेटवर्क की बात आती है, अब इसका स्पेक्ट्रम और बड़ा करते हो स्टोरी का। अब मैं डीजिंग में तो चला गया, बट मेरा कोई डीजे दोस्त ही नहीं है। मैं किधर जाऊँ, किधर बात करूँ, डीजिंग क्या है मुझे पता भी तो करना है, व्हाट इज दिस, मैं कैसे घुस गया। बट ऐसा भी नहीं कि मुझे डीजिंग नहीं पता था, लेकिन 2011 जब अंडरग्राउंड डांस कम्युनिटी में आया तो हिप हॉप के 4 एलिमेंट होते हैं, ग्राफिटी, एमसिंग, ब्रेकिंग एंड डीजेइंग, यू नो। तो इन सारे एलिमेंट से मैं वाकिफ था, बट मैं डीजे से स्पेसिफिकली कॉन्वर्सेशंस थी नहीं मेरी गई। तो आई लाइक मुझे कंट्रोलर लेना है, पैसा आ रहा है, तो मुझे पता चला डीजे शॉप इंडिया के बारे में। तो डीजे शॉप इंडिया में क्या हो रहा था कि डीजे स्किप है लेजेंडरी पायनियर ऑफ दिस इंडस्ट्री, तो वो वर्कशॉप करा रहे थे टर्न टेबल्स की। तो कहते वर्कशॉप है, आओ डीजे से वगैरह, और सब कमेंट वगैरह कर रहे हैं। मैंने बोला आई गेस देयर इज अ प्लेस वेयर आई शुड गो टू मीट लाइक माइंडेड पीपल। से अगेन द माइंडसेट ऑफ कि चलो लेट्स गो एंड मीट पीपल, ऐसे देखते क्या सीन है। तो हाँ, लाइक अगर एक एट्रीब्यूट होना चाहिए तो देखो भाई क्या सीन है, देखते क्या सीन है। वो इंडियंस में है भी, जेसीबी की अगर खुदाई भी चल रही है तो खड़े होके देखते भाई क्या सीन है। तो वो लड़ाई हो रही है तो क्या सीन है। सीन ये होता है ना कि सीन देखना सबको पसंद है, बट नोबडी इज लाइक विलिंग टू बी इन द सीन। मैं भी जाता था डीजे शॉप, मैं आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। वो मैं आ रहा हूं जोन शुरू हो रहा है, मैं जाता था डीजे शॉप, बट आई वाजंट इन दैट जोन कि मैं बहुत ज्यादा लोगों से बात करूं। आई यूज्ड टू गो विद वन ऑफ, एक मेरा दोस्त था उससे ज्यादा था, मैं बस देखता रहता था कि हाँ ये तो हम वो डीजे शॉप में गए तो वहाँ पे मुझे ये मिला, वहाँ पे हमें 4 से 5 मतलब 10-11 डीजेस मिल गए। अच्छा, और so you met in a DJ shop, you both? या we met in a DJ shop India। वाह, ये देख रहे हो ट्रिप, नेटवर्किंग। मतलब कैसे अगर मैं डीजे शॉप के लिए जाता ही नहीं तो क्या बता आज मैं इस पॉडकास्ट में, क्या पता वो होता ही नहीं, लेकिन ट्रिप ही नहीं हो रही होती ना, कुछ भी सीन हो सकता है। मतलब वो एक छोटा, वो बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक थॉट है, पर जाना है, मुझे नहीं पता क्या है, कौन है। भाई लोग बाहर जा रहे होते हैं ना पढ़ाई करने, द मेन एडवांटेज ऑफ दैट इज नेटवर्किंग। तुम्हें यहाँ पे फ्री की मिल रही होती है कायदे में। और नेटवर्किंग का मतलब ये भी नहीं है कि तुम जाओगे नेटवर्क हो जाएगा, इट्स जस्ट दैट तुमने वाइब करी लोगों के साथ की नहीं, और वो बहुत ज्यादा यूनिवर्सल चीज है। A lot of time is a time waste as well, but exactly I can agree with that। हर किसी चीज के लिए वो वर्कआउट नहीं कर सकती, और मैं भी उस इंटेंशन से नहीं किया था कि मुझे चीजें वर्कआउट करानी है। मेरे को तो बस देखना था स्क्रैचिंग क्या है, क्या ट्रिप है, मेरे को वो सीखना था। बट वहाँ पे कॉन्वर्सेशन इजाद होने लगी। There are many events where like I think in Mumbai some events happen where like there are music production focused and there are a lot of synthesizers you can try। Not in Delhi, नहीं होती है, मुंबई का सीन तो काफी वर्कशॉप्स होती रहती है। हाँ, तो जाना जरूरी है, आई थिंक बेस्ट है। वही मतलब आई थिंक पुश योरसेल्फ टू मूव आउट। अगर मैं पॉइंट अभी बोलना चाहूंगा, जितनी भी बात अभी हुई है, कि जस्ट बी क्यूरियस। क्योंकि अगर आप क्यूरियस नहीं रहोगे तो यू कैन नॉट you won't feel the urge to go out or network with any kinds of people। अब ये है कि चलो मेरे को if I'm not curious, I mean, let's say मेरे को DJing start करनी है, I want to become a DJ again, तो अगर मैं क्यूरियस ही नहीं हूँ कि हाँ चलो कर लूँगा यार, ठीक है कोई बात नहीं, तो आई विल नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी, आई विल गेट 0 अपॉर्चुनिटी। बट इफ आई एम क्यूरियस, अगर मैंने 3 लोगों को बताई ये बात कि यार मैं ऐसे सोच रहा हूँ डीजिंग स्टार्ट, तो कुछ है, कुछ लीड है, ये है वो है, ही माइट टेल मी समथिंग, आप मेरे को एक चीज़ बताओगे, तीसरा बंदा मेरे को एक चीज़ बताएगा, उन तीनों के क्यूमुलेशन से मेरे को एक कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन मिलेगी, अच्छा यहाँ पे कुछ हो रहा है। लेट्स से ही एडवाइज मी टू गो टू समर हाउस, मैं बोलता चलो ठीक है समर हाउस में इवेंट्स हो रहे हैं, आई शुड गो देयर एंड सी क्या वाइब है। अब मैं वहाँ जाऊँ, आई शुड बी क्यूरियस अगेन कि यहाँ पे कौन करवा रहा है ये इवेंट, कौन करवा रहा है। या इसमें मेरा बहुत अच्छा पॉइंट है। तो जब भी आप ऐसे डेकोरम में जाते हो, जैसे कि आप किसी इवेंट में चले गए, सो इसका एक हैक है जो मैंने अभी फिगर आउट करा अपने एक्सपीरियंस से। ऑलवेज लुक फॉर दी हेरारकी देखो, टॉप कौन है। जैसे तूने बोला इवेंट कौन करा रहा है, सबसे टॉप मोस्ट बंदा ऑर्गेनाइजर होगा, देन उसके अंदर प्ले कौन कर रहा है, प्ले करने के बाद
यहाँ का ऑपरेशन मैनेजर कौन है जो यहाँ का स्टाफ देख रहा है, फिर ऑपरेशन मैनेजर से आपको पता चलेगा कि यहाँ का ओनर कौन है, ओके फिर ओनर से आपको पता चलेगा कि उसके कितने शेयर होल्डर है, फिर उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली किससे बात करनी है टू गेट टू कॉन्टैक्ट जिससे ऑर्गेनाइजर बात कर रहा है। ऑर्गेनाइजर वो 4-5 ओनर्स होते हैं एक प्रॉपर्टी के हमारे यहाँ दिल्ली में, तो वो ऑर्गेनाइजर किसी एक ओनर से बात कर रहा है, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको वो बंदा मिले, ओके तो आपको वो भी फिगर आउट करना पड़ता है कि वो आर्टिस्ट को कौन हैंडल कर रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट को ऐसी प्रॉपर्टीज में हमेशा एक डिफरेंट बंदा ही हैंडल कर रहा होता है कि ब्रो हम ये सब पैसे वैसे का देख रहे हैं, मैं रेस्टोरेंट का देख रहा हूँ, रेस्टोरेंट है अपना, मैं फूड का देख लूंगा, मैं स्टाफ का देख लूंगा, ठीक है, मैं देख लूंगा कितना प्रॉफिट मिल जा रहा है कितना, तू ऐसे कर, तू ना वाइब का देख ले, तू म्यूजिक का देख ले, ऐसे बोलते ओके वन क्वेश्चन ऑन दैट, Yeah. फॉर एग्जांपल हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में डिस्कस करा है कि रिकॉर्डिंग केटर्स टू द लाइव इंडस्ट्री, ओके, नाउ यू आर डूइंग DJ sets and you're Yeah. recording bunch of content around it. How important is that also to, you know, once you found the right people, हाँ ठीक है, how would you pitch them? Would you pitch through मेरे को एक प्ले करा लो, ऐसा तो होगा नहीं. Pitch through like how How would you, what will you show Let's to say show your credibility कि मैं कर hierarchy सकता हूँ. follow करके you Yeah, you connect found with the the right right people. people. पहुंच गया You बात connected कर with the रहे right people. हाँ. पहुंच गया तो, connection. अब क्या उनको ये वाला ही बहुत यार बहुत अच्छा पॉइंट पूछा, बताओ, वेरी नाइस वेरी नाइस, पता है क्यों? Handshake. क्योंकि द रीजन भी यार हमने हाथ मिलाया भी था जब हम मिले थे अभी, नहीं मिला. है ना, वो जरूरी था यार, सॉरी अबाउट दैट, नहीं मिलाया था हम लोगों ने. मिला था, पता ही नहीं चला, तो स्मूथ सही हो गया होगा, है ना, एनीवेज फक इट. हाँ, तो सीन क्या था कि अब क्या मुझे पता है कि मैं किसी से बात करता हूँ ना तो अट्रैक्ट हो ही जाता है कि भाई इस बंदे की क्या स्टोरी है बेसिकली, राइट. कई बार में ऐसा भी होता है, मुझे पता है कि आई एम गुड एट लाइक टॉकिंग टू पीपल एंड ऑल, एंड सम टाइम जब मैं रेडी नहीं था, जब मेरा कंटेंट ही रेडी नहीं था, तो मैं लोगों से उस लेवल पे इतना बात नहीं करता था, Okay. मैं वहाँ तक नहीं जाता था कि मुझे गिग चाहिए. हाँ. तो उसके ही 2 एडवांटेज हो गए कि उनको पता चल जाता है कि बंदा उस प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट से नहीं आया कि इसको मेरे से गिग चाहिए, Okay. क्योंकि वो सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है कोई भी कॉन्वर्सेशन का. But there could be different way to pitch that. You which don't doesn't have to seem you bad. don't have to pitch in मतलब the social I event. think this In the ये social मैंने event, ये yeah. Because you मैंने भी नोटिस करा है कि Yeah. whenever you're trying to network with somebody, don't force yourself, like don't sell yourself Don't first. sell like so एक social event है. make a Yeah. friendship first and then sell yourself. और ये मतलब friendship थोड़ा का- long term तो Exact. देखना ही पड़ता है. Yeah, I think that choosing the right words is the thing. choosing Choosing the right words वो भी है, वो Choosing भी the है. right words. वो Mold तो your खैर conversation in a वो- way that I वो ना do फिर this that thing. is yeah. like something for a very professional person who like knows what he's talking about. आपको काम नहीं मिल diplomatic सकता बंदा pitch होना करके, चाहिए. साफ सीधी बताऊं मैं But market का direct pitch करके you won't get But all then ये how तो- would you pitch like that? Let's say you if Conversation you went with the start sense of कैसे करना now people are want बता to, देता no, हूँ now people want to pitch something. हाँ. Yeah. ठीक Pitch- है, अब तेरे को पिच करना है, बात होगी एक लेवल पे आ गई. बात हो गई है. हाँ. बट अगर किसी पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी अपने सेट की, तो वो एक बोनस नहीं होगा. नहीं वो होना But चाहिए. उसको कैसे Obviously, pitch कहीं करेंगे तो अगर हम होए, लोग? कहीं तो आप 2 चीजें दिखा सकते हो उसमें. देखो आप डिपेंड करता है आप किसको अपना किस टाइप का कंटेंट है आपके पास. Okay. अगर आप एक सर्टन म्यूजिकलिटी लेके चल रहे हो, जैसे कि मेरे को डिस्को और फंक म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो मैं उसको ये नहीं बता सकता यार मैंने ना इधर इधर इतना जगह प्ले करा है, डिस्को फंक प्ले करता हूँ, उसको कुछ सुनाना ही पड़ेगा. इफ़ इन केस मैंने एक, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टीज ही नहीं है जहाँ पे वो म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो मुझे उसको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी, ब्रो मैं ये प्ले करता हूँ. और वो ऑर्गेनाइजर अगर वो डिस्को प्ले करवा रहा है ना, जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो ऑलरेडी वो ऐसे जॉनरास भी प्ले करवा रहा है जिसमें वो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उन आर्टिस्ट से भी. Exactly. मिक्स टेप चाहिए किसी की वीडियो, तो वो तो मैंने वीडियो ऐसे कर दी कि यार अब मैं मिक्स टेप रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, तो क्यों ना वीडियो के सामने कर लूँ. नहीं आई You know, थिंक just give a तूने कर presentation ली, board. बट आई इन माय ओपिनियन दैट्स लाइक द बेस्ट वे ऑफ Presenting yourself. presenting yourself. I guess this is the- if you are a person Yeah. who doesn't want to go out, who has issues in terms of like meeting people, Okay, like putting that. yourself out, Okay, ये direction. do the work in like do the hard work at your home, At your build home. like a In fucking a brand. comfortable space. Yeah. अपने हाँ, zone में तो बना लो पूरा. इसकी भी एक Show चीज yourself. बता लोग देता भागे भागे आएंगे हूँ. तुम्हारे इसकी भी एक चीज बता देता हूँ मैं तुम्हें कि या लाइक अभी मुझे कोई डिस्को और फंक का इवेंट तो देने नहीं वाला, बट मैं प्ले तो कर सकता हूँ ना, वो कौन रोकेगा मेरे को. तो मैं वो अपॉर्चुनिटी यूज करी That मैंने. is a mindset basically कि मेरे को gig नहीं मेरे को मिल गिग रहा है, नहीं मैं play कर मिल रही, लेता हूँ. बट मैं अपनी गिग तो बना सकता हूँ. अपनी gig बना सकता हूँ. मैं शूट भी कर सकता हूँ. शूट भी कर सकता हूँ. Yeah. Put it out. Like काम अच्छा होगा, a lot जरूर of मिलेगा. famous live musicians who started their career, they
made the party happen by themselves. Like they invited all their friends, booked a farmhouse, and they were like, we will play here. Only our actual सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं फिर तो. पार्टीज है इनिशियली भी, जब जो पहली हिप हॉप पार्टीज और ये सब हुई थी, वो इधर उधर के भागे हुए लोग थे, वो कह रहे यार हमें अपना, मतलब उनको कोई ऑफिशियल पार्टीज में नहीं आने दे रहा था. अब दे वर लाइक भाई हमें अपना जोन ब्लॉक पार्टीज होस्ट करी थी अफ्रीका तो उन्होंने वो अपने पोस्टर वो सब प्रिंट करा के दे लाइक let's say Viri wants to release something and he's like, I want to do a big promotion whatnot thing. He organizes a small party for his set. It's great, right? And like calls all of us there. उस वैसा प्रमोशन भी हो रहा है. He is getting some sort of networking. Probably we get some friends as well, and he is recording the content. भाई घर पे बैठे हो तुम सारी चीजें कर लो. So have your own sense of community. 4 लोग ही हो, 3 लोग ही हो, कुछ भी सकता है. I feel like definitely things can be done. Yeah, that's a great point. काफी लेयर्स अभी इसमें, और पूछ लो मेरे से. सही बता रहा हूँ, कहाँ से कहूँ. No, so मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. काफी है. तो नेटवर्किंग गेम में नेटवर्किंग उन लोगों के लिए तो आसान है जो जिनकी पर्सनालिटी थोड़ी आउटगोइंग है. ये बात तो मेरा उनके लिए पॉइंट उनके लिए था जो ऐसे काफ़ी लोग मेरे को कांटेक्ट करते हैं. सर लाइक आई डोंट फील लाइक putting out my music. I don't feel like going out to meet any people, you know, like अपने आप में insecure होके बैठे हैं वो. So बहुत अच्छा point है. That's why I was bringing that point कि तुम अपने में जो हो सकता है करो. Like you know, एक स्टेज फ्राइट भी होता है, देन देयर इज कैमरा फ्राइट एज वेल. यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन थिंग्स. उसके लिए मतलब दैट इज समथिंग आई हैव गॉन थ्रू. मतलब मैं नहीं था इतना ओपन ना, मैं खुद देखा. आई डिडंट टॉक टू पीपल एट ऑल और कुछ भी. मतलब आई हैव नेवर बीन इन दिस जोन कि मैं किसी से भी कहीं भी जाऊंगा और मैं किसी से भी बात कर लूंगा. इट इज समथिंग आई हैव कल्टिवेटेड राइट थ्रू यू नो ऑब्जर्विंग पीपल एंड इनको देख के, और किसी को भी मतलब बेसिकली देख के कि चीज़ें हो रही है एंड हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. सो व्हेन आई वाज यू नो लर्निंग डीजेइंग, तो मेरे को वो मेरा जो इंस्ट्रक्टर होता था वो बोलता था कि यार जाओ पार्टीज़ में करो बात अपने लिए. कैसे कैसे हो सकते हैं, तो बकवास बात है ये. तो मैं जाऊँगा फिर क्या होगा. मैं चला भैया समर हाउस, हमें खड़ा हूँ वहाँ पे, मैं खड़ा ही रहेगा पूरे इवेंट में, लेजिट खड़ा ही रहेगा. तुम खड़े रहोगे. कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है इस पॉडकास्ट की कि दोनों पर्सपेक्टिव के लोग ही बैठे हुए. एक आउटगोइंग और जिसने इंट्रोवर्ट होने के बावजूद स्टार्ट करा. मैं खड़ा ही रहेगा वापस आके. मेरे साथ भी ऐसे ही होता है जब भी मैं पार्टीज आता हूँ. आई जस्ट वांट टू लिसन टू द म्यूजिक. मतलब मेरे को दैट इज समथिंग आई टेल माय सेल्फ कि मैं तो गाना सुनने आया हूँ ना. मतलब इट्स जस्ट बट what if you talk to a few people. That's why मैं कह रहा था कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ म्यूजिक नहीं होता, जहाँ पर तुम्हें लिटरली बात ही करनी होती है. अरे मीटअप्स हो रहे हैं. अच्छा मीटअप्स, नेटवर्किंग इवेंट्स यार होते हैं दिल्ली में. स्मॉल फेस्टिवल सॉर्ट ऑफ थिंग, you know, like where there is a panel and people are talking about certain things. You can just force yourself to go to those events. वहाँ पे रहो, कोई ना कोई बात कर ही लेगा आपसे कोई अप्रोच कर देगा, या फिर आप कुछ मतलब थोड़ा बहुत तो आपको अपने आप पुश करना पड़ेगा 100%. बट आई बिलीव मी, अगर आप थोड़ा बहुत भी पुश करोगे और अपने आप को थोड़े कॉन्फिडेंस में लेके आओगे, यू विल स्टार्ट टॉकिंग. देखो आर्टिस्ट को भी ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम एक परफॉर्मिंग आर्ट्स में है, ठीक है. राइट. तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करके और ट्रेस तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको. वो आपको जाना पड़ेगा कंफर्ट जोन से. मेरे हिसाब से मैं बहुत बोल्ड हूँ इस टॉपिक को लेके. मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने में रह गए तो फिर रह गए भाई आप. क्योंकि आपको अगर कल को आपको कोई मैनेजर भी यू नो डील कर रहा है, मतलब वो संभाल रहा है आपको और वो लेके जा रहा है आपको इवेंट में, आप ऑडियंस से कैसे रिलेट करोगे जब आप माइक पे आओगे. ट्रू. कैसे रिलेट करोगे उनसे, है ना. आप ग्राउंड लेवल पे इतना वीक हो, तुम्हें मैनेजर ने पहुंचा दिया, ये कर दिया, फिर वही है. मतलब फिर आई डोंट नो, लाइक मैं अभी और एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस स्टेज में. मैं उन आर्टिस्ट से भी मिलना चाहूँगा जिनकी मैं सुनना चाहूँगा. क्या पता ऐसे हो यार, दुनिया बहुत बड़ी है, हो सकता है कि वो पहुँचे हुए एक बहुत अच्छी स्टेट में बट दे डोंट टॉक people. हो सकता है मैं मिला नहीं अभी उस टाइप के लोगों से. There are many ways that you can reach a ladder. Like maybe वो देखना रहता है. Someone does really well digitally that they've been called, and this guy doesn't speak much but just like drops bars, you know. ऐसा भी हो सकता है. बट वो कहीं तो फट रहा है ना. तुम म्यूजिक भी तुम्हारा नॉर्मल है, फिर तुम्हारा ये भी नॉर्मल है, वो भी चल रहा है, और फिर उसके बाद आप so you have वही सीन है कि अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, so you have the power of या तो monetizing your product digitally. Exactly, बहुत सही पॉइंट है. इतना फोड़ दो कि मतलब फोड़ सकते हो भाई, यही ऑप्शन है. you don't have any option. and if you are like you know extrovert,
like any other person or like Veer a little bit. Yeah, so you can just like really bomb तो this place. इसमें भी एक networking place, right? इसमें भी एक Definitely, चीज़ है, मतलब हम भी कई बार, और कुछ आर्टिस्ट जो आप भी बैठे हो उस साइड ऑफ स्क्रीन में, बोलते कि यार ये बंदा कैसे पहुंचे, इसका म्यूजिक इतना भी अच्छा नहीं है, ये इतना लेवल पे कैसे पहुंच रहा है. इट्स जस्ट दैट ओनली, just that. नेटवर्किंग, कॉन्वर्सेशन. एग्जैक्टली, मतलब दे आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. सो वो भी है, obviously but वो वहाँ That जाके is also बात there, भी but like करें. everyone has their own sense of like you know skill and power in terms of like कि एक बंदा networking और extrovert है, थोड़ा outgoing है, चाहे इतना skilled ना हो, but like he is super like confident. एक एग्जांपल in दे front of सकता हूँ people. मैं इसमें. एक Yeah. हम मीटअप पे थे, तुमने ऑर्गेनाइज करवाया था, क्या नाम था, एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन देना. बेसिकली इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसने मीटअप कंडक्ट करवाया था एंड ही जस्ट लाइक इनवाइटेड अ बंच ऑफ आर्टिस्ट. Yeah, yeah. तो हुआ क्या कि मैं वही 2-3 महीने से मैं कोई पार्टी में कहीं नहीं जा रहा था और मैं जोन आउट हो गया था. इसको ही फोन मिला था मैं, मतलब ब्रो कुछ सीन चल रहा है क्या, मतलब मुझे थोड़ा आउट होना है, मैं बात ही नहीं, मतलब जोन में नहीं. बस मैंने बोला, कहता ब्रो एक मीटअप थ्रो कर रहा हूँ, बड़े सारे म्यूजिशियंस आ रहे हैं, तो Right. आर यू अप. मैंने बोला यार चलो ठीक है आते हैं. मैं जाता हूँ उस इवेंट में, लाइक 15-20 लोग होते हैं और सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं पर्पसली, और ये भी फुल पावर बात कर रहा है और मैं बात नहीं कर पा रहा. हाँ. मुझे समझ नहीं रहा कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करूं. तो समझ रहे हो, और मैं बोल रहा हूँ वीरे इतना क्या जोन आउट हो गया, अब तू बात नहीं कर रहा. Right. क्योंकि कई बार आप जोन आउट हो सकते हो राइट चीज़ों से. और उस इवेंट में एक ऐसा ओकेजन आया जिसमें सबको बोला कि माइक लो, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो और बताओ. मैंने बोला यार वीरे, अगर तूने माइक लेके नहीं बात करी, चाहे तू जोन मिली है तो कुछ भी बोल दे, बट अगर तूने माइक पकड़ के अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करा ना, तेरा आना व्यर्थ हो है. जाएगा. मतलब हाँ, कुछ नहीं कर सकता. ऐसे तो सोचना मतलब पड़ेगा. नहीं बात. और ये हुआ था मेरे साथ, लाइक मैं पूरे जोन में था, मुझे माइक लेना और मुझे नहीं पता था, कुछ भी टॉपिक चल रहा था, पता है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बात करूँ. बट somehow आई वाज लाइक कि हाँ यार इस लाइन पे इस चीज से मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता हूँ, Okay. जस्ट स्टार्ट कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं देख लूंगा जो होती जाएगी चीज. हाँ. मैं चला गया माइक पे, और मेरी पता नहीं एक आदत है कि जब भी मैं लो कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, हाँ. मैं थोड़ा ऊंचा बोलता ज़्यादा हूँ. लाउड. मैं थोड़ा ऊंचा बोलता हूँ, हाँ, उससे ना लाइक यू नो लाइक डायफ्राम थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, यू लाइक फील ओके, एड्रेनलिन रश मिल जाता है एंड यू से थिंग्स राइट. मैंने रिप्रेजेंट करा माइक पे, मैंने बात करी, पता नहीं क्या बोला, मुझे अभी भी याद नहीं है. ठीक है, तू नहीं सुना होगा But that effort you But look उसके at- बाद उसके बाद क्या सब कह रहे यार आपकी पर्सनालिटी हमें बहुत बढ़िया लगी, आपकी यार. एनर्जी बहुत अच्छी यार, थी, और आपका ये इनसे आके सबने बात कर ली rather than he going to talk to people. तो- Everybody was like यार आपसे बात करनी है, आपकी बड़ा मजा है आपकी बात क्या सुन के सीन ना. है क्या है, तो वो वाली सीन हो गया था मेरे साथ. तो इट्स जस्ट दैट ओनली तो लाइक चाहे उस वाले जोन में नहीं फटा हो, बट बड़े लेवल पे फोड़ दिया तुमने. हाँ मतलब लाइक Stage पे चला गया Just you need to हाँ, be वही You need to in be a you zone. need to be thinking like that. जैसे सोच रहा था कि Exactly, like हाँ. how like हाँ. अगर नेटवर्किंग इवेंट में कहीं जा रहा हूँ तो कुछ प्रोडक्टिव हो, हो चार यार, लोगों से बात हो. पर्पस ही वही था meetup पर्पस ही का. वही है. कुछ मतलब करो, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन से तो पुश आउट करना ही पड़ेगा. और अगर आपको This लोग is a- आपकी वाइब के नहीं मिल रहे हैं तो इट्स It's फाइन. normal, it's fine, तो it's fine. जरूरी थोड़ी है आपको उनसे लॉन्ग नहीं टर्म कर सकता, मैं किसी से रिलेशनशिप बात नहीं कर सकता. It's always good to you know add more perspectives, you know get more perspectives. Right. कि अच्छा चल मेरे को नहीं पसंद आ रहा है बंदा, बट हाउ इज ही डूइंग, ये कैसे एज एन आर्टिस्ट मैनेज कर रहा है, ये क्या, उससे वही पूछ लो. यार मैं जब पढ़ने गया था ना बाहर, तो जब वो बेसिकली दे हैव दिस थिंग वेयर दे मेक अस, it's supposed to be called a blind date. I don't know why they named it that like that, but what they're doing basically is that कि जितने भी producers हैं और वो performance वाले लोगों के साथ बैठ के they will speak with everyone in the circle and each and everyone will have to speak with every people. कुछ कोई कहीं वहाँ से लाइक चिले से है, कोई ब्राज़ील से है, कोई कहाँ से है. So everyone is just trying to understand each other and if they can work together. So even in that wow. context we had to open up. बहुत कि सही. भाई and you have, so that's one of the pitch that we can really recommend to anyone is that कि कोई जा रहा है किसी से बात करने, अपने म्यूजिक के बारे में बात करो. Ask them Exactly. कि आप किस तरह का म्यूजिक बनाते हो, अच्छा आप किस तरह की वाइब है, who all are the you know artists that you're inspired with, किस तरह के साउंड्स आप यूज करते हो, अच्छा कब तक पढ़े हो. So that if you ask more people about them rather than telling about yourself, that really works. ये conversation, ये एक सिंपल सा हैक है जो which I also use because मतलब मैंने करता I बहुत guess खतरनाक ऐसे level पे. ही figure out करा है कि how can I you know network with Exactly, people. I've seen. I am not a person who would share a lot about myself. Exactly. Yeah. बट अगर मैं दूसरे बंदे से पूछता रहूँ and then I find a topic जिस पे मैं उसके साथ
रिलेट कर सकता हूँ, तब मैं उसके साथ बात कर लूँगा, See, then I'll become सही कह confident. रहा है, तो इट्स ऑल अबाउट नो, बिकॉज हम लोग जैसे मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूँ ना, किसी को पूछूं उसके बारे में, सो आई अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, That's also a fact. एंड देन यू लाइक इफ यू आर लाइक फिर मोर मुझे ये भी समझ एडवांस, आता है कि इससे कितनी बात करनी है, कितना That मूवमेंट also बनना happens, yeah, yeah, है, तो अब अगर लगे एडवांस है जी, नाइस सर भाई, इंस्पायर कर दिया अगर आपने किसी मेरे ने को। अगर कोई एडवांस्ड है तो तो उससे I'll become curious basically, फिर मैं और चीजें पूछूंगा, हार्ड क्वेश्चंस पूछो, 100%. कितना एडवांस्ड है, कितना, हाँ क्या, बस फिर वही आप है, क्या हार्ड करेंगे? क्वेश्चन तभी पूछ सकते हो कि आप कौन से ओकेजन में खड़े हो, सोशल इवेंट में तो नहीं पूछ सकते, वो खुद भी हाई हो सकता है, बट हाँ अगर मीटअप पे तो स्ट्रेट अप यू कैन गो फॉर दैट. See, Basically, as a creative person, you will always have something to show, okay? And the fact that you're not going to networking event, उसके पीछे ये भी एक चीज़ है कि तुमने you have not worked on yourself as an artist. So work on yourself as an artist, be fucking confident कि तुम वहाँ पर जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करो. जैसे वीरे कुछ 4-5 गाने बना के वीडियो बना के गया वहाँ पे, मुंह उठा के नहीं गया, नहीं, और उसके बाद वो भी नहीं था ब्रो मेरे पास कुछ तो नहीं, मतलब तो खत्म. फिर तो अब अलग देख लेवल लो. ऑफ कॉन्फिडेंस था. देखो, बल्कि अब ये देखो, या तो खत्म था ब्रो. ऐसा भी होता है ना कि अगर आप कुछ बना रहे हो तो आप बनाते ही रह जाओगे. So मैं वही बोल रहा हूँ, there are personalities who have confidence in themselves in a way that they can brand themselves always amazing and great even without like making things regardless of the happen. fact उनके पास कुछ है But नहीं है क्या. yeah, it क्या doesn't- ये क्या बोल रहे हो ये सब? मैं अपने भी क्यों लेने लगी आप तुमसे? नहीं बोल रहे हो. वीरे अच्छा काम करता है. नहीं सही है, नहीं बोल. हम लोग हर एक टाइप के लोगों के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल होनी चाहिए, मुझे And, बहुत अच्छा लगे. एंड part होता है. व्हाई वी आर सेइंग दैट इज कि तू जब तूने चीज़ें नहीं भी बनाई थी तब भी तेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई Yeah, था बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन सो गुड विद मार्केटिंग एंड लाइक योर स्टेज प्रेजेंस एंड लाइक योर you know camera presence, which is not that everyone has, like that's really nice, it's a really good Thank skill you to for have. But what I meant is कि मेरे में तो नहीं थी. I've always been camera shy, and since last 1 or 2 years we started making content, and now I'm always in front of camera. So it's all about just like going through it. And ये सारी चीज़ें मैंने टाइल करी है. मैं भी खुद नेटवर्किंग इवेंट में बात नहीं करता था, बट बाद में मेरे को कॉन्फिडेंस इसलिए आया बिकॉज आई वर्कड ऑन माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट साइड बाय साइड. आई गेन कॉन्फिडेंस एंड एज वी स्पीकिंग कि उनसे जान लो उनका एक्सपर्टीज क्या है. अगर उनका कुछ एक्सपर्टीज नहीं तुम फोड़ दो सीन कि भाई ये देखो, एंड देन पीपल विल बी लाइक ओके आई प्रॉब्ली नीड टू टेक योर नंबर, तुमने काफी बकवास कर दिया. ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है. So that's the thing. I mean, if anyone basic hacks है ये सब यार. that's a good topic जो different kind of like personality के based भी है. और हम दोनों टाइप की पर्सनालिटी बैठी है, जिसने काम करा है मेरे पे था थोड़ा बहुत. हाँ, तो अब वीरे ऐसा नहीं कि काम नहीं करता है. वीरे बहुत सारे म्यूजिक निकाल चुका है ऑलरेडी, and he has been working for like past 2-3 years already in creating Yeah. many different kind of content. We're talking in context with जब हम सब beginners थे. Exactly. और yeah, so you can check out all our music. We'll be mentioning that in the video what all kind of work we've done. And कहीं से हम thanks, बकवास like, ना कर रहे हो. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग दो यार, मेरे को बहुत No मजा आया worries. मतलब यहाँ पे ना रह के. बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा है इस हाँ, बारी. इट्स काफी इवन मोर इंटरेस्टिंग. बहुत मस्त कॉन्वर्सेशन. ये क्या मैं मेरे को पता भी सिलेक्टेड नहीं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, आई एम आप नॉट श्योर. सिलेक्टेड हैं. आप मुंबई आ रहे हैं. आप सिल्क रोड आ रहे हैं. आपका स्वागत है इंडियन आइडल में. Anyways, सारे yeah. टॉपिक्स हो गए. हाँ हाँ. So guys, like please let us know कि कुछ भी अगर तुम लोग को सही लगा इस पॉडकास्ट में, if you connect with anything that like we said, काफ़ी सारे टॉपिक्स थे ऐसे जो you could relate with, and I feel कि कोई भी और टॉपिक से निकल के आता तो प्लीज लेट अस नो बिकॉज वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू क्लियरिंग आउट थिंग्स दैट एवरीवन इज गोइंग थ्रू एज एन 100%, आर्टिस्ट 100%, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. इफ यू बीन वाचिंग दिस ऑल द वे थ्रू द एंड प्लीज hit that subscribe button and you know and let us know. दबा दो भाई and let us know. Follow Veer as well. He makes some kick-ass music and augment and V_Ray. yeah कर देंगे आपका लिंक Yeah. डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपका Link लिंक. लूंग. right Link and हम लोग सिल्क रोड पे तो बना ही रहते हैं म्यूजिक, and augment also makes his own beats, so check out his stuff as well. And yeah, thank you so much for joining us, and See you we'll see you in the next in our podcast. next episode. See you Alright, guys. take care. Bye.